آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک و ما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا مولا اللہ تبارک و تعالی کا احسان اور ہم سب کے لیے نجات کی زمان امام حسین علیہ السلام کا شہر مولا کی بارگاہ میں موجود آپ سب کے لیے دعا گو ہیں۔ خداوند متعال آپ سب کو جلد کربلا مولا آنے کا شرف عطا فرمائے۔ اور جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ 20 ذو الحجہ 1447 ہجری قمری ہے اور ہم اس وقت کربلا مولا میں آپ سب کے لیے دعا گو ہیں۔ اور جس طریقے سے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ انگریزی کی تاریخوں کے اعتبار سے 6 جون 2026 عیسوی ہے اور 20 ذو الحجہ ہمیں یاد دلاتا ہے عید مباہلہ کی مناسبت کو ہمیں یاد دلاتا ہے اور ہم 20 ذو الحجہ کو یاد کرتے ہیں اس مناسبت سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے دین کی حقانیت کو خمسہ آل ابا مل کر برقرار فرمایا، برگزار فرمایا اور ہر کسی کے سامنے اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کو آشکار فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دن جو ہے ہفتے کا دن رسول اعظم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کا دن ہوا کرتا ہے اور ہم آج کے دن میں مولا کی مہمان نوازی میں رہے اور ان کی شرف نوازی سے ہمیں یہ شرف ملا۔ جی ہمارے ساتھ آج کے مہمان امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 اسپانسر میں آج ہمارے ساتھ مہمان ہوئے ہیں جناب محترم مولانا آصف علی عسکری صاحب نجف اشرف سے۔ آئیے ہم ان سے مولا کے اس آج کی مناسبت سے متعلقہ گفت و شنید کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ کرم مولا کا احسان ہے، احوال پرسی کا شکریہ۔ مولا آپ کو بھی خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھیں۔ آج کی مناسبت یقیناً روز روشن کی طرح آشکار ہے اور میں اسباب ثواب آپ کی خدمت میں آج کے دن کی عید مباہلہ کی مبارکبادی عرض کرتا ہوں۔ خیر مبارک آپ کو بھی اس عظیم فتح اہل بیت علیہ السلام کی بہت ساری مبارکیں ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کو اور خصوصاً آپ کے اس امام حسین چینل کا بہت شکریہ جنہوں نے یہ سعادت بخشی کہ ہم اس عظیم مناسبت کو شائع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔
मौला आपको सलामत रखें इंशाअल्लाह। आपका भी शुक्रिया कि आपने अपने वक्त को मज़ीद गरामाया बनाने के लिए इस प्रोग्राम को इख्तियार फरमाया और मोमिनीन तक मारिफ अहले बैत अलैहिस्सलाम पहुँचाने में पेशकदमी फरमाई। तो मैं चाहूँगा कि मुस्तकीम हम राह कलाम पर पहुँचते हैं और चाहूँगा आयत मुबाहला में ये जो 3 मरतबा ना के साथ लफ्ज़ आए अबना आना, निसा आना और अनफुसना, इस पर अगर लबकुशाई फरमाइए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंद मुताल ने अपने लारैब किताब सूरत आले इमरान की आयत नंबर 61 में इरशाद फरमाया कि फमन हाज्जक फीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म फकुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। ईद मुबाहिला की मुनासिबत से ये आयत करीमा नाजिल हुई है और आपका जो सवाल है वो ये है कि ये जो जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है अबना अना व निसाअना व अनफुसना, सबसे पहली बात कि इस आयत के अगर हम मुफरद हैं इसके लिए मुतअद्दिद तौजीहात बयान हुई हैं कि जमा का सीगा क्यों इस्तेमाल होता है। खुसूसन अगर मौसूफ जिसके मुतालिक आयत नाजिल हो रही है अगर उसकी अजमत और उसकी फजीलत को बयान करना मकसूद हो तो फिर जमा का सीगा इस्तेमाल होता है। जैसे खुदा खुद वाहिद और मुतअद्दिद मकामात पर खुद को जमा के सीगे के साथ याद किया है। इस आयत करीमा में जो 3 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं अबना अना, निसा अना व अनफुसना, इनका अगर हम मफहूम देखें तो इसका मफहूम बहुत वसी है। यानी अबना में तमाम असहाब, चूँकि नबी अलैहिस्सलाम और मौला अमीर अलैहिस्सलाम के लिए हदीस मुबारक है कि हम इस उम्मत के रूहानी बाप हैं। इस हदीस के मातहत इस आयत का जो मफहूम है वो वसी हो जाता है कि इसमें असहाब भी शामिल हो जाएं, खुसूसन बनी हाशिम के अफराद भी शामिल हो जाएं। लेकिन इस आयत से वसी तरीन मफहूम के बावजूद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत करीमा का सिर्फ मफहूम नहीं बल्कि उम्मत करीमा को मिसदाक दिखाए हैं कि अबना से मुराद कौन है, निसा अना से मुराद कौन है और अनफुसना कौन है। ये वो आयत करीमा है जिसमें बिल इत्तेफाक जो मुहद्दिसीन इस्लाम हैं, मुहद्दिसीन इस्लाम का मतलब ये कि सिर्फ शिया नहीं बल्कि बाकी मज़ाहिब वाले और बाकी फ़िरक़ों को फॉलो करने वाले तमाम मुहद्दिसीन ने इस आयत करीमा पर इत्तेफाक ज़ाहिर किया है कि यहाँ पर अबना अना से मुराद सिर्फ हसनैन करीमैन है और निसा अना से मुराद जनाब ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा है और अनफुसना से मुराद जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। एक अजीब बात जो शेख ज़मख़शरी ने अपनी तफसीर अल कशाफ में लिखी है, उन्होंने लिखा है कि इस आयत का मफहूम इतना वसी होने के बावजूद रसूल खुदा निसा अना की जगह पर जनाब सैयदा को और अनफुसना की जगह पर अमीरुल मोमिनीन को ले जाए, ये आयत और मिसदाक बता रहा है कि जनाब सैयदा और जनाब अमीरुल मोमिनीन का कोई मिसल और नज़ीर ही ना था कि रसूल खुदा किसी और को ले जाते। सिर्फ अगर कोई वाज़ेह मिसदाक था तो अमीरुल मोमिनीन और जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी। हाँ, अबना अना में चूंकि हसनैन करीमैन 2 फर्द हैं, इस वजह से 2 फर्दों को लिया क्योंकि दोनों एक दूसरे की नज़ीर और मसल हैं। अगर एक ना हो तो उसके बगैर आयत मुकम्मल नहीं होती। तो इस अबना अना, निसा अना और अनफुसना से मुराद सिर्फ पंजतन पाक हैं। ज़मख़शरी ने एक और खूबसूरत बात अपनी तफसीर अल कशाफ में लिखी है कि फ़ख्रुद्दीन राज़ी, जिसको इमामुल मुशक्किकीन के नाम से भी याद किया जाता है, कि आयत हर वो आयत के जिसमें अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फजीलत बयान हुई हो उसमें उन्होंने कोशिश की है कि फजीलत अहले बैत को कम किया जाए, लेकिन ये वो वाहिद आयत है जिसमें उसका भी इत्तेफाक है कि इस अब निसा अना और अनफुसना से मुराद सिर्फ जनाब अमीरुल मोमिनीन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा और हसनैन करीमैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही हैं।
सुभान अल्लाह। मौला सलामत रखें और इस मौजू को मज़ीद आगे पेश रफ्त देते हैं। गो के जुमले अबना, निसा, अनफुसाया, लेकिन मानी व मफ़ाहिम के अतबार से फ़कत तस्निया इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर ही आया। बाकी दोनों ज़वात मौला अली अलैहिस्सलाम और बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को मुफरद ही लाया गया। वाक़े मुबाहला से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मकाम व मंजिलत के बारे में क्या मालूम होता है? देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है जिसको हमें अपनी नज़र में रखना चाहिए वो ये कि जैसे हमने पहले बयान किया कि इस जो मफहूम है वो वसी है, लेकिन इस वसी मफहूम के बावजूद सिर्फ पंजतन पाक का इंतखाब पंजतन पाक की अहले बैत और अहले बैत अलैहिस्सलाम की फजीलत को बता रहा है कि इन हस्तियों जैसा उस वक्त कोई ना था जिनको जनाब रसूल खुदा साथ लेकर आते। और इनकी फजीलत आप खुद वाक़या मुबाहला को अगर आप किरात में ले आएं और वाक़या मुबाहला को आप पढ़ें तो किस तरह वो वकू पजीर हुआ जब वहाँ पर दो शख्स नसरान के जो नजे सरबराह थे, सैयद और अल आकिब के नाम से दो शख्स थे। ये दोनों शख्स जब जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आते हैं और वहाँ मुशाहिदा करते हैं मदीना मुनव्वरा में कि रसूल खुदा की वज़इयत क्या है और वो कौन सा दीन लेकर आए हैं, किस तरह से हम इस बैयत से बच सकते हैं, क्योंकि जनाब रसूल खुदा ने इस इस्लाम की दावत के लिए उनको दावत पेश की थी और फिर उन्होंने मुबाइले से पहले वो मदीना विजिट के लिए आए थे। वहाँ पर इन लोगों ने जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुबाइले से पहले जब पंजतन पाक के साथ जनाब रसूल खुदा आए तो इन लोगों ने पूछा कि ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, आप किन अफराद के साथ हम मुबाइला करने आए, यानी आपके साथ कौन से वो अफराद हैं जिनके जरिए आप हमारे साथ मुबाइला करना चाहते हैं। मैं इस तफसील में इसलिए गया हूँ ताकि मैं इस अहले बैत अलैहिस्सलाम की फजीलत को जनाब रसूल खुदा की हदीस से ही साबित कर सकूं। वहां पर जनाब रसूल खुदा ने इनको जवाब में इरशाद फरमाया, बाहलकुम बिखैर अहलिल अर्द, ए नजरान याद रखो मैं आपके साथ मुबाहला उन अफराद को लेकर आया हूं करने के लिए जिनसे कोई इस कायनात में है ही नहीं। खैर अहलिल अर्द, इस कुर्रे अर्ज पर जो सबसे ज्यादा बाफजीलत शख्सियात हैं मैं उनको लेकर आपके खिदमत में आया हूं। उसके अलावा फिर इन अफराद का तयन होना अल्लाह की तरफ से कि सिर्फ ये पंजतन पाक ही इस मुबाहले में जाएंगे, ये इनकी हक्कानियत की वाज़ेह दलील है जिसको कोई इंसान जुटला नहीं सकता। और फिर हक और बातिल के इस अजीम मार्ग में इन सिर्फ 5 हस्तियों का जाना साबित होता है कि इस्लाम की कामयाबी मौकूफ है पंजतन पाक पर, क्योंकि ये सिर्फ मुबाहला न था बल्कि एक पूरी अकीदा खत्म करके इस्लाम के अकीदे के लाने का ये एक मार्का था जिसमें पंजतन पाक का बहुत अहम किरदार था कि अल्लाह ने सिर्फ इन्हीं को ही मदऊ किया कि ये 5 ही जाएंगे ताकि अल्लाह की वहदानियत और हकानियत को साबित किया जा सके। इसके अलावा एक और चीज है, वो ये है कि आज के दौर में जो दाइयाने हक हैं, आज के दौर में जो हक का दावा करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सबक है कि जब रसूल खुदा अल्लाह की वहदानियत के सबूत के लिए पंजतन पाक को लेकर जाता है तो आज के दौर में हक का दाई इनके दामन से हाथ छुड़ाकर हक तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हक सबूत ही पाक के दामन में है। तो आज के दौर में हक के दाई को अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ तमस्सुक करना पड़ेगा ताकि वो हक तक पहुंच सकें। आखिरी बात जो इस सवाल की है वो ये है कि जो शख्स अहले बैत अलैहिस्सलाम और खुसूसन पंजतन पाक की फजीलत का मुनकिर है और इनकी विलायत का मुनकिर है और इनके उस फजल और अता का मुनकिर है जो अल्लाह ने इनको अता की है, तो ये तालीमात और दावत रसूल खुदा से ना आशना है, क्योंकि रसूल खुदा ने इनको हर मैदान में बताया, खुसूसन जब हक और बातिल का मारका था तो इन्हीं पंजतन पाक के साथ जनाब रसूल खुदा गए थे और यही वो सच्चे और सादकीन हैं जिनसे तमस्सुक का खुदा ने हुक्म दिया है। मुबाहले के मफहूम पर भी
थोड़ी सी रोशनी डालिए। हाँ, जहाँ तक मुबाहले का मफहूम है, तो दो किस्म के जो तर्जमे किए गए हैं इस लफ्ज़ मुबाहला के, लेकिन दोनों का मफहूम एक ही बनेगा। हम उसको वाज़े करते हैं कि अगर आप अहले सुन्नत की लुगत और इसमें देखें तो आपको मुबाहले का माना मिलेगा कि मुबाहले का मतलब है कि लान करना, यानी अगर दो शख्स आपस में मुबाहला करते हैं तो यानी एक दूसरे के साथ लान करने को मुबाहला कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अगर हम अपनी डिक्शनरी में तो हमारे पास मुबाहले का माना नहीं है, बल्कि हमारे पास मुबाहले का माना है कि किसी को उसके हाल पर छोड़ देने को मुबाहला कहते हैं। इसलिए आयतुल्लाह मोहसिन अन-नजफी ने अपनी तफसीर अल कौसर में ये लिखा है कि मुबाहले का मतलब है कि किसी को अल्लाह की रहमत के बगैर उसके हाल पर छोड़ देना। और मौला अमीर इस्लाम के नहजुल बलागा के कलिमात में से एक कलिमा ये है कि जिससे अल्लाह की रहमत दूर हो जाए तो इससे बड़ी लान नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि मुबाहले का मतलब ये है कि इंसान को उसके हाल पर छोड़ दो और वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है, और जो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है इससे बड़ा कोई लाइन कायनात में नहीं हो सकता। माशाअल्लाह, मौला सलामत रखें। बहुत उम्दा बयान। अगर कोई मोमिनीन को कोई पैगाम देना चाहे मुबाहला की मुनासबत से तो आपके पास कुछ वक्त है, बिस्मिल्लाह। मैं इस मुनासबत से एक जो पैगाम देना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, मुबाहला हमें कुछ चीज़ें समझाता है जिसकी हमें इस मुआशरे में ज़रूरत है। मसलन जब ये मुबाहला हो रहा था तो नजरान के जो बड़े सरदार थे उनको मदीना भेजा गया था कि वो देखें हालात क्या हैं जनाब रसूल खुदा की रिसालत के और वो किस तरह अपने दीन को आगे बढ़ा रहे हैं। जब वो मदीना में पहुंचे तो उन्होंने, मगरिब का टाइम हो रहा था यानी सूरज गुरूब होने वाला था, तो उन्होंने मशरिक की तरफ मुंह करके अपनी इबादत शुरू कर दी जो वो नसरान के अपने दीन के मुताबिक करते थे। तो चंद लोगों ने उन्हें मना किया कि ये नहीं करना चाहिए, ये मस्जिद नबवी है और आप हमारे दीन के मुखालिफ हैं। उन लोगों को जनाब रसूल खुदा ने मना फरमाया कि इनको न रोको, यानी ये जिस अकीदे पर हैं या दीन के साथ ये मुतमस्सिक हैं उसके इनको इबादत करने दी जाए, यानी इनको न रोका जाए। 3 दिन तक उन्होंने मस्जिद नबवी में अपने अमाल और इबादत अंजाम दी थी जो मैं कराए थे। तो हमें इस वाक़े से ये दर्स मिलना चाहिए और हमें ये होना चाहिए और हमारे अज़हान आलिया में ये बात होनी चाहिए कि कोई भी शख्स किसी भी दीन या किसी भी फिरके के साथ ताल्लुक़ रखता है, हमें उसके साथ नफरत नहीं करनी चाहिए। वो अपने हिसाब से अपने खुदा को याद कर रहा है, हम अपने हिसाब से अपने खुदा को याद कर रहे हैं। खुदा सबका एक है, तरीक़ेकार मुख्तलिफ हैं। हालांकि वो रसूल खुदा की रिसालत के मुनकर थे, उस वक्त उस दीन पर नहीं थे, लेकिन फिर भी रसूल खुदा ने इजाज़त दी कि मस्जिद नबवी में अपने तरीके और तौर तरीके पर आप इबादत कर सकते हैं। लेकिन अफसोस, अगर हम अहले बैत अलैहिमुस्सलात और रसूल खुदा की तालीमात को देखते तो जो इंतशार हमारे मुल्क के अंदर है अल अमान, तो हम उससे बचे रहते। हम अपने मोमिन को ये बताना चाहते हैं कि आप किसी के मजहब और किसी के तौर और तरीके को देखकर उसके साथ नफरत ना करें, बल्कि उन्हें अपने सीने से लगाएं जिस तरह रसूल खुदा ने नजरान को लगाया और फिर उन्हें राह रास्त पर लेकर आए। मोहब्बत का ही एक वाहिद तरीका है जिसके जरिए से हम अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं और लोगों को दीन हक की तरफ दावत दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब मौलाना आसिफ अली अस्करी साहब फ्रॉम नजफ़ अशरफ। यकीनन ये ज़िक्र और ये मार्फत के जुमलात हमारे लिए तोशा आखरत साबित होंगे और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मज़ीद इल्म, तरक्की और अहले बैत अलैहिस्सलाम की मार्फत में इजाफ़ा अता फ़रमाए और अहले बैत अलैहिस्सलाम की मारिफ को ज़माने में आम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने शिरकत फ़रमाई और अपने वक्त को मज़ीद गरां बहा बनाया और खुदावंद मुताल आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। इंशाअल्लाह जब मौका मिला आपको मौला का ज़िक्र करने के लिए दावत देने का शरफ़ हासिल करेंगे और उम्मीदवार रहेंगे आप भी इसी तरीके से बाबरकत ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से महफ़िलों को मुनव्वर फ़रमाते
رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا. خداوند متعال آپ کی توفیقات بہت خیر میں شکریہ. اضافہ فرمائے. بہت شکریہ. جزاکم ربکم خیر الجزا. بہت شکریہ. سلامت جزاکم رہیں. اللہ. خدا کو سلامت رکھیے. انشاءاللہ بارگاہ امیر المومنین میں بہت شکریہ آپ کا. سلامت رہے. مولا آپ کو بھی سلامت رکھے. بہت شکریہ. یقیناً اہل بیت علیہ السلام کے معارف زمانے میں عام کرنا ایک بہت بڑا شرف کا کام ہے، اور ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ ہے ہی کیا. ہم جو بھی کر لیتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس کی منتہا انتہا آخر خداوند متعال ہم سب پر رحمت برکت نازل فرمائے. عید مباہلہ باہلا یباہلو باہلتن فہو مباہلون مباہلتن، یہ مفرد مؤنث اسم فاعل کا کلمہ ہو جائے گا. دیکھیں جب بھی باب مفاعلہ آتا ہے اور تو اس میں دو طرفہ بات ہوتی ہے، اور مفاعلہ کی بات میں اسی طریقے سے ہم جب مباہلہ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں دو طرفہ بات ہے. اور یہ مباہلہ ہوتا کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو کسی بھی بات میں جب ہم پہنچ جاتے ہیں منتہا پر، اور جو شرعی طریقہ ہمارے سامنے واضح ہوا اس سے اخذ یہی ہوتا ہے کہ جب طرف ثانی آپ کی مکمل دلیل کو قبول نہ کرے تو پھر اللہ کو ہم حاضر ناظر جانتے ہوئے ایک صیغہ پڑھتے ہیں کہ اللہ اگر میں حق پر ہوں تو میری قبول فرما، اور اگر حق پر نہیں ہوں تو اس طرح سے کر دے. مثلا یعنی عذاب کا مانگا جاتا ہے کہ اللہ اگر یہ حق پر نہیں ہے تو عذاب دے ڈال. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس جب نصارہ نجران اکٹھے ہو کر آئے اور آ کر اپنی دلیلیں پیش کرنے لگے، دلیل کیا پیش کی کہ جناب عیسیٰ، دیکھیں عیسائیوں میں بھی کافی سارے مذاہب ہیں. کچھ جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، کچھ اللہ کا برگزیدہ مانتے ہیں. بہرحال ان میں بھی کافی سارا سلسلہ ہے، اور اس میں منتہائی کلام یہ کہ انہوں نے کہا کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. دلیل کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو لہذا بغیر باپ کے کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، تو یقیناً اللہ کے بیٹے ہیں وہ. تو جواب میں جو دلیل پیش کی گئی، کہا کہ اگر باپ کے بغیر پیدا ہونا اللہ کا بیٹا ہونے کی دلیل ہے تو جناب آدم و حوا علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ ان کے تو نہ باپ تھے نہ ماں تھی. جی سیما حیدر صاحبہ ہمارے ساتھ کراچی سے محفل میں شریک ہیں. السلام علیکم. محترمہ سیما حیدر زیدی صاحبہ السلام علیکم. بی بی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. غالباً محترمہ سیما حیدر زیدی صاحبہ کو ہماری آواز آ رہی ہے، شاید دیکھتے ہیں دوبارہ. السلام علیکم. شاید کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے ان تک آواز نہیں پہنچ رہی. کبھی کبھار کوئی نیٹ کی پرابلم، کبھی کبھار سیٹ اپ میں کچھ مشکلات ہو جاتی ہیں. بہرحال سلسلہ ہے توسل کا. جی السلام علیکم. ارے کربلا محترمہ سیما حیدر زیدی صاحبہ، جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں محترمہ سیما حیدر زیدی صاحبہ، آپ کو اگر آواز آ رہی ہے تو ریپلائی کیجئے. جی آ رہی ہے آواز آپ کی؟ یہاں پر آواز اسٹوڈیو میں نہیں آ رہی. جی
جی آپ کو عید مباہلہ کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور چاہوں گا کربلا کی طرف رخ کر کے اپنے مولا کو سلام اور عرض عقیدت پیش کیجئے اور مولا سے توسل فرمائیے. بسم اللہ. جی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ابا الفضل عباس ابن امیر المومنین وابن سید الوسیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اپنے پاک پروردگار عالم کی، آج مجھے اس میں زیارت نصیب ہوا. اور پھر میں دعا کہوں امام حسین ٹی وی 4 کے تمام ممبران کے لیے کہ ان کا یہ عظیم عطا کرے. اور یا اللہ میں پھر مبارکباد پیش کرتی ہوں اپنے مولا حسین اور مولا عباس کو عید مباہلہ کی بہت بہت مبارک ہو، اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کو. اور پھر میں دعا ہوں اپنے چاروں بچوں کے لیے پروردگار عالم میری مون معروف علی عباس انشاءاللہ چاروں بچوں کو کامیابی عطا کریں، ان کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا کریں، بیماری ہر بلا مصیبت سے بچائیں اللہ مولا حسین مولا عباس کے صدقے میں. اور جلد از جلد مجھے میرے چاروں بچوں کے ساتھ کربلا آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور باقی محمد والے محمد کے صدقے میں میرے جو والدین ہیں اور میرے میاں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں. اور یا اللہ جن مومن اور مومنات نے مجھ سے دعاؤں کی لکھا ہے ان کی دعائیں مستجاب ہو جائیں، میرے چاروں بچوں کی دعائیں مستجاب ہو جائیں. اور مون کا پرمیسو آ جائے جلد از جلد. اٹلی میں میری بچی اس نے دعا کروائیے کہ آپ سب بھی دعا کیجیے گا اس کا پرمیسو جلد از جلد آ جائے. میں اپلائی کیا ہوا ہے کافی مہینے ہو گئے ہیں. تو مولا حسین مولا عباس کے صدقے میں اور جو امام حسین ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ان سب کے حاجات بھی اللہ مولا عباس مولا حسین کے صدقے میں پوری کرے جلد از جلد. اور جن کو یہ حاجت ہے وہ کربلا مولا آئے تو ان کو بھی کربلا مولا آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مجھے بھی جلد از جلد بلکہ 40 پہ مجھے کربلا مولا آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور میرے وقت کے ماں کے رسول میں تعدیل فرمائے. الہی آمین الہی آمین. مولا آپ کو سلامت رکھیں، صحت دیں، تندرستی دیں. مولا آپ کو کبھی کسی کم ظرف کا محتاج نہ ہونے دیں. بار بار کربلا مولا آنے کی توفیق عطا فرمائیے. آپ کا اپنا پروگرام ہے اور مومنین کو بھی ترغیب دیجیے گا اپنے توسل کے لیے اس پروگرام میں ضرور کال کریں. بہت شکریہ آپ کا. سلامت رہیں، آباد رہیں. پروگرام امام حسین علیہ السلام سے ربط کے لیے، توسل کے لیے، آپ کی دعاؤں کے لیے، آپ کی حاجات کے لیے، آپ کی مشکلات کے حل کے لیے تو ضرور کال کیجیے اور شریک ہوئیے تاکہ آپ کی آواز مولا کی بارگاہ میں پہنچ سکے. بہرحال دلیل دی گئی، دلیل جواب تو کوئی نہ تھا. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں تو جواب میں دلیل دی گئی قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ اس سے کوئی جنا گیا. بہرحال جب اس سے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی وہ کسی کا بیٹا ہے، قبول نہ کی ضد پہ اڑ گئے. تو کہا اگر نہیں مانتے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. جی بات کو آگے بعد میں بڑھائیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فاطمہ بطول صاحبہ ملتان سے. السلام علیکم. وعلیکم یا علی مدد. آپ کو عید مباہلہ کی بہت بہت مبارک ہو. آپ کی بھی مبارک ہو. سلامت رہیں بیٹا. مولا کی بارگاہ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، مولا سے توسل کریں. بسم اللہ. پورا کام ہوتا تھا اور میرے کو یہ موہر پہ میرے کو قبر آنا ہی تھا. یہ موہر پہ آنا قبر موہر جی بتا دیں الہی آمین. موہر جی موہر پہ قبر میں آنا یہ موہر پہ قبر اور موہر تاکلیں زندگی اور وہ پڑھانے جاتے. الہی آمین. مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے، آپ کی مشکلات حل فرمائے. مولا آپ کو صحت دیں، تندرستی دیں. بار بار کربلا مولا آنے کا شرف عطا فرمائے. آپ کے بزرگوں کا سایہ آپ پر سلامت رہے.
بس دعا کرو پر یہ تا کھولے انشاءاللہ تا بڑے تا کھولے انشاءاللہ جن یہ تو بتا انشاءاللہ سب کو جانا تھا بس جن کا مسئلہ ہے یہ جن یہ ہو گیا اتم تو یہ اتم ہو جائے بس یہ مولا بس یہ مولا پہ جانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ مولا جلد یہ جنگ ختم کریں اور آپ کو جلد کربلا مولا آنے کی توفیق عطا فرمائے. سلامت رہیں. بہت شکریہ آپ کا. مولا آپ کو سلامت رکھیں. نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے. سلامت رہیں, آباد رہیں. مولا سے ہم توسل کرتے ہیں اور توسل کے لیے مولا کا ذکر ایک مہم چیز ہے. بہرحال آیت نازل ہو گئی فمن حاجہ کا فیہ, جو بھی آپ سے محاجہ کرے, مقابلہ کرے, زورگوئی کرے, قبول نہ کرے, جو بات کو نہ مانے, فی ہے اس بات میں کہ جو کہ آپ نے دلیل دی ہے, من بعد ما جاءک بہ من العلم, اس کے بعد کہ ان کے پاس اس میں اس کا علم بھی آ گیا ہے, لاجواب ہو گئے ہیں, بے دلیل ہو گئے ہیں, تو کیا ہوگا؟ فقل تعالو, پھر آپ ان سے کہہ دیجئے چلیے, بلاؤ, ندا کرو, پکارو, ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں. اب وہ تو کوئی لائے یا نہیں لائے اس کا تو تذکرہ نہیں ملتا, لیکن امت کے اندر جو بیٹے ملے رسول خدا کو, بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے دو فرزند امام حسن و امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کوئی نظر نہ آیا. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, تھیں بہت ساری خواتین تھیں مکہ میں, مدینہ میں, مومن تھیں, مسلم تھیں, شاید خاندان میں بھی اور ہوں گی, لیکن جس خاتون کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے مباہلہ میں دین کی سربلندی کے لیے اہل سمجھا, وہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ کوئی نثار نظر نہیں آتی. انفسنا و انفسکم, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس جنہیں رسول خدا نے پکارا تھا, بتایا بھی تھا, علی نفس اللہ ہیں, ایک تو نفس اللہ ہیں, علی کی مجھ سے وہ منزلت ہے جیسی روح کی بدن سے ہوتی ہے. بہرحال اس کے ان سب دلیلوں کے ساتھ ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے نفس جنہیں قرار دیا مباہلے کے اندر, عین اپنی ذات قرار دیا, وہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ذات تھی. اب یہ کاروان, محبت کا کاروان, دلیل کا کاروان, حمایت کا کاروان, سربلندی کا کاروان چل پڑا. جی جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سیدہ ثروت زہرا زیدی صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلامت رہیے. آپ بھی سلامت رہیں. یا علی مدد, مشکل کشا علی مدد. مولا آپ کو سلامت رکھیں. آپ کی آواز کربلائے مولا میں گونج رہی ہے. عید مباہلہ کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت مبارک ہو, آپ کی پوری ٹیم کو, پورے کربلا کو سلامت رہیں. بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک ہو. سلامت رہیں. مباہلہ میں آنے والوں کو مبارک ہو, خیر مبارک شریک ہو. ہونے والوں کو مبارک ہو. سلامت رہیں. کربلا کی مباہلہ بنانے والوں کو بہت مبارک. الہی آمین. آپ کی آواز کربلائے مولا میں گونج رہی ہے. کربلا کی طرف رخ کیجئے, مولا کو سلام اور عرض عقیدت اور توسل کیجئے. بسم اللہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم علی مرتضیٰ, السلام علیکم بی فاطمۃ الزہرا سید نساء العالمین, السلام علیکم یا غریب القربا, السلام علیکم یا معین الزائر الفرا, السلام علیکم یا شمس الشموس, السلام علیکم سبحان رب والجم, السلام علیکم عبدالحسن ابن موسیٰ, السلام علیکم بی بی معصومہ ایکم, یا بی بی زینب بن کلثوم, یا بی بی رقیہ سکینہ. دیدی آپ کو بہت سلام. ہمارا آپ کی جد کا عید مباہلہ کا بہت بہت آپ کو مبارک ہو. آپ کی جد کرتے ہوئے جتن کے موری کیتے ہوئے تھے. السلام علیکم سعیدیہ میرے اس کے بعد زمان, السلام علیکم شریف اخلاق, السلام علیکم امام الجان, السلام علیکم امام زمانے میں حاضر اللہ کرے اللہ مطلب
اور ظفور کو یا مولا، ظفور کو یا مولا، ظفور کو یا مولا، آمین۔ آپ کو یہ موبائلہ کا بہت مبارک ہو یا امام وقت، آپ کو یہ خوشیاں مبارک کریں مولا، آپ غیبت سے آئیں مولا، آپ دنیا میں جو جلوہ افروز ہوں یا آنکھیں آپ کو دیکھنے کے لیے بے چین ہیں، مر بھی جائیں تو آپ کی صدا تو کریں، قبروں سے زندہ ہو کے نکل آئے مولا آپ کو دیکھنے کے لیے، الہی آمین۔ السلام علیکم یا غازی عباس علمدار سکینہ یا علمدار حسین، اے غازی وفا مولا، آپ جانتے ہیں میرے کہ آپ میرے بھائیوں کو جیتا رکھ، میرے بھائی قمر رضا، مجھے رضا، میرے شہزاد حسن مجاد شمس کو، شجاعت کو زندگی اور صحت کو مولا، خاص کر شجاعت کو، شمس کو، قمر بھائی کو، میرے منور بھائی کو زندگی صحت دے اور ان کی روزگار میں اضافہ کر، پروردگار میرے اسد بھائی کے روزگار میں اضافہ کر، اور میرے بھتیجے ہیں طاہر رشید، حیدر، شارق، حسن، حسین، عبداللہ، علی اصغر، علی عباس ہے، اور ایسے زندگی صحت دے، اور میری بچی ہیں جو رہائی میری بھتیجی ہیں بندی مولا زندگی صحت دے، اور بچی مریم میں قرت ہے، منائل، دعائے، علیزہ، فرحان، بہترین برتھ ڈے کے دن مبارکہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہماری بچیوں کے نصیب بچے کر، میری علی زہرا، تنزیلہ کو، خاور کو، سیدر کو، اور میرے شعیب پیغمبر کو سلامت رکھ، زندگی صحت دے، گل زہرا کو، خدا کو صحت و زندگی دے مولا، صحت والی زندگی دے، ہمارے دو بچے ہیں علی مرتضیٰ، علی موسیٰ، انہیں زندگی صحت دے، وجی حیدر، غازی محمد غازی، المیرا پہ سکینہ ہے، زینب بنی طارق کہنا مسلمان، اور مسلم کو زندگی صحت دے، پروردگار عالم میرے بھائی، اور میری بہن سمیلہ کو زندگی صحت دے، حسن کو صحت و سلامتی دے، اولاد دے، رباب کو بہترین برتھ دے مولا، میری زینب کو زندگی صحت دے، زینب کو بہترین برتھ دے، زندگی کے ساتھ رہے اور ماں باپ کو سلامت رکھے، اس کے میری فرد کو، سمینہ کی، شہبہ کو زندگی صحت دے، پروردگار عالم، اور اعظم کو زندگی صحت دے، طالب بھائی کو زندگی صحت دے، بہت ساری دعائیں مولا آپ ایک بار جانتے ہیں، مجھے کربلا میں آنا ہے، دوبارہ مجھے زیارت کرنے آنی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، پروردگار مجھے بلانے والا ہے، میں ضرور آؤں گی انشاءاللہ۔ آپ سن رہے ہیں سب سے بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے، اور جو ابھی بیمار ہیں خود کے مولا ابھی بیمار کے زندگی صحت ہے، اور جو بے اولاد ہیں انہیں بھر دے مولا ان کی، اور صحت کے ساتھ اولاد عطا کر، اور جو بیٹھی ہیں بچوں ان کے لیے بہترین درد دے، الہی آمین۔ الہی آمین، الہی آمین، جیدہ قصہ کے لیے خاص دعا ہے مولا انہیں اولاد سے نوازے، الہی آمین، الہی آمین۔ الہی آمین۔ مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، صحت دیں، تندرستی دیں، مشکلات حل فرمائیں، جلد کربلائے مولا آنے کا شرف عطا فرمائیں۔ مولا سے کہیے مجھے صحت دے دوں بس، میں آپریشن سے بچ جاؤں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا آپ کو صحت دیں، تندرستی دیں اور مشکلات حل فرمائیں، سدا سلامت رہیں اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے دامان رحمت سے متوسل رہیں۔ مولا آپ کو خوش رکھیں۔ اب پہنچ گئے مباہلے کے لیے، اب بقائے دین کی خاطر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کو اپنے گھرانے کے علاوہ کوئی ایسا نظر نہ آیا، اور اپنے گھرانے میں ان اربع خود سمیت خمسہ آل ابا سمیت کوئی اور نظر نہ آیا۔ اب لے کر جب چلے تو یہ نصارہ نجران پہنچ چکے تھے۔ اب ان میں سے ایک نے کہا کہ جس کے بھویں اور پلکیں بہت بزرگی کی وجہ سے سفید اور وہ آنکھوں پر آ چکی تھیں، تو اس نے ساتھ میں موجود کسی سے کہا کہ میری پلکوں کو اٹھایا جائے، بھووں کو اٹھایا جائے تاکہ میں دیکھ سکوں۔ دیکھا، کہا کہ کون آ رہے ہیں؟ کہا کہ فلاں 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 آ رہے ہیں۔ تو کہا کہ اگر یہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو لے کر آتے ہیں تو ہم اب مباہلے سے کنارہ کشی کریں گے، دست اٹھا لیں گے، ہاتھ اٹھا لیں گے، کیونکہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حق پر ہیں اور جزیہ دینے پر یہ راضی ہو گئے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ، بہرحال تفاصیل کے اندر جایا جائے تو تفاصیل میں یہی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ طہارت کے
कदम बढ़ाते हुए आगे आगे आ रहे हैं। गोद में इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, उंगली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गोदी में है और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की उंगली पकड़ रखी है, और मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम आखिर में है। दरमियान में सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशानों पर चलती हुई आ रही हैं, और बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कदमों के निशानों को अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अपने पाँव के कदमों के निशानों से पर्दा बख्शते आ रहे हैं। और जब ये कैफियत के साथ पहुँचे हैं और जलालत व अज़मत को देखा है, तो इन सब ने पसपाई इख्तियार की और जरिया देना कबूल किया। लिहाजा ये तारीख़ के अंदर सब तो वाक़या है और कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता। देखिए, ऐसा कोई भी वाक़या जिसके अंदर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को ख़ास फजीलत दी गई है, उसमें कोई और शरीक नहीं मिलता, चाहे ततहीर हो, चाहे मवद्दत फिल कुर्बा हो, चाहे मुबाहला हो। जी, ताहिरा बुतूल साहिबा रावलपिंडी से हमारे साथ शरीक महफिल हुई हैं। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम या अली मदद। जी, या अली मदद। फिर मौला अली मदद। मौला आपको सलामत रखे। करबलाए मौला में आपकी आवाज़ गूंज रही है, मुबाहला की मुनासबत है यहाँ पर, तो मैं आपको मुबारकबादी पेश करना चाहूँगा। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको मुबारक हो, सलामत रहें। करबलाए मौला में आपकी आवाज़ गूंज रही है, तरफ रुख कीजिए करबला के, दिल पे हाथ रख लीजिए, नज़रें झुका के अपने मौला को सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैका इब्न रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैका इब्न अमीरुल मोमिनीन इब्न सय्यदुल बिस्सिद्दीन, अस्सलामु अलैका इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुन li वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि हिस्सा व फी कुल्लि सा वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व व तुरदिहु फी हत्मीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अल्लाहुम्मा बद्दिल फी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व अला अली इब्न हुसैन व औलाद हुसैन व असहाबिल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नी असअलुका राहत इंदल मौत वल मग़फ़िरत बअदल मौत वल अफ़ज़ल हिसाब। अल्लाह अर्ज़ुक़नी फ़िद दुनिया ज़ियारतुल हुसैन व फ़िल आख़िरति शफ़ाअतुल हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे मौला आपकी तरफ से बेशुमार मुबारकबाद चीज़ें मुबारक के लिए और अपने प्यारों के अपने पाक घराने की सच्चाई के लिए बहुत बेशुमार मुबारकबाद। और जो मोमिन परेशान परेशानियाँ फरमाएं और जो बीमार हैं उनको अता फरमाएं, जो बेरोजगार हैं उनके रोजगार में मदद करें। बच्चों को दीन की तालीम हासिल करने के लिए उनके लिए दस्ते छप फरमाएं और उनको बार बार अपने दर की ज़ियारत नसीब फरमाएं। इलाही सदा सलामत रहें। बहुत शुक्रिया। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाइए। आपका अपना प्रोग्राम है, नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। और मोमिनीन को भी ये नंबर शेयर फरमाइएगा ताकि और मोमिनीन भी तवस्सुल के लिए शरीक हो सकें। बहुत शुक्रिया। मौला आपको सलामत रखें। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। फ़ी अमानिल्लाह। मौला की अमान में रहें। फ़ी अमानिल्लाह। मुबाहला हो तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात तय्यबा में गया, लेकिन ये सिलसिला अच्छा जो हम कहेंगे ना, बात
इस महीने में जो शुरू हुई ना, वो मौला से शुरू होकर नफ्स पे आके तमाम हुई है। लोगों के लिए मौला फरमाया था, अपनी ज़ात का हिस्सा फरमाया है। अब आप तारीख़ी एतबार से देखिए तो ये मुबाहला ईद गदीर से पहले है और एक साल पहले है, एक साल पहले है, जिसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि ने एक साल पहले मनाया लोगों के सामने। अच्छा, वक्तन फ़वक्तन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि, आप नोट कीजिए, ज़्यादातर वाक़यात मुहर्रम से पहले ही आ रहे हैं। आमादगी की जा रही है मुहर्रम में हक्कानियत के इजहार की। रफ्ता रफ्ता, धीरे धीरे, लम्हा लम्हा, लहज़ा लहज़ा, घड़ी घड़ी लोगों को फ़जीलत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ आमादा किया जा रहा है। देखिए, बात चलती है ना, जब इसकी के पहले आए ततहीर नाजिल हो रही है, 6 महीने दरवाज़ा बतूल सलामुल्लाह अलैहा पर आकर बार बार आए ततहीर हर नमाज से पहले तिलावत फरमा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा व मादिनुर रिसाला, बार बार पुकारा जा रहा है, लोगों को सिखाया जा रहा है। ये तो फिर कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, इसके ज़रिए बताया जा रहा है। फिर बताया जा रहा है आयत मुबाहला के ज़रिए से। फिर बताया जा रहा है बल्लिग की आयत पर अमल करके, मन कुन्तु मौला कह कर लोगों को कभी अंगुश्तरी रकू में हदिया कर रहे हैं। लोगों के बताई जा रही है फजीलत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, यूतून ज़कात व हुम राकिऊन की आयत के तहत। कभी आसमान से भुना हुआ परिंदा नाजिल हुआ है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जब तक तशरीफ़ नहीं लाते, तैर मशवी कहा जाता है, तैर परिंदा, मशवी भुना हुआ, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का इंतज़ार किया जा रहा है। हिजरत आ रही है तो हिजरत के अंदर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को अपने बिस्तर पर सुलाकर व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मराज़ातिल्लाह का ऐलान किया जा रहा है। मदीना पहुँच गए हैं। मदीने में कहा जब तक दाखिल ना होऊंगा जब तक अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ना ले आए। इजहार किया जा रहा है, मुवाख़ात की बात आ जाती है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि ने एक बार मक्का में, एक बार मदीना में सीग़े मुवाख़ात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ पढ़ाया। इब्तिदाई इस्लाम की तरफ चले जाइए, वहाँ पर भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि को हुक्म हुआ, वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने प्यारों को डराइए, अपने अक़रबा को डराइए। अब देखिए, 2 आयतों को आपस में, वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, आपके अक़रबीन एक है, एक कुर्बा है। फिर अक़रबीन बहुत सारे आ गए थे, लेकिन कुर्बा में फ़कत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कोई ना आया। महवर रिसालत कुर्बा में आकर सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर मुहीत हो जाता है। वहाँ पर भी मौला अली अलैहिस्सलाम की फजीलत का इकरार कराया, लोगों को बताया हादा वसी व खलीफती। व लोगों ने कहा कि अबू तालिब, पहले तो बेटे के पीछे, पहले तो भतीजे के पीछे चल रहे थे, जाओ अब बेटा भी आ गया, इसकी भी इताअत करते रहना। ये मलूनों के अल्फाज थे, चिढ़ा रहे थे, कोई खुश होने की बात नहीं है। ये रसूल बदतमीज़ी है, बेहूदगी है जो कर रहे थे ये लोग। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने एक दिन से कूद, दूसरे दिन से कूद, तीसरे दिन जैसे ही खड़ा होने लगा, अबू सुफियान हाथ रख दिया कंधे पे, कहा खड़ा हुआ तो मन के ज़बान गुद्दी से खींच लूँगा, बैठ जाए यहीं पे बदतमीज़ इंसान, बात पूरी सुनेगा, बाद में जाएगा रोज़ाना खा खा के पेट
फुलाता जा रहा है बदतमीज, बकरे खा खा के पल गया, जहन्नुम के ईंधन, बैठ जा यहीं पर, बैठा दिया। अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वाले ने सीधा किया। अब जो बात बनवाई तो भाग लिए, मालूम थे क्या असर होना था। रहमतल लिल आलमीन के सारी ज़िंदगी देखा था, जिन्हें अमीन कहते रहे थे, सादिक कहते रहे थे, आज उनके मुनकिर होते चले जा रहे हैं। बहरहाल सिलसिले चलते रहे। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को कभी बिस्तर रसूल पर सुलाते हैं, कभी रसूल खुदा की जगह अपने किसी बेटे से बदल देते हैं। मकसद यही था, बताना यही चाहते थे कि मेरे बेटे आप पर फिदा हो जाएं अगर कोई हमला करे, लेकिन रसूल की ज़ात बच जाए। ये खानवादा अबू तालिब अलैहिस्सलाम की रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वाले से ख़ुसूसी अक़ीदत थी, और इस अक़ीदत को बाकी रखा गया, और अल्लाह ताला ने भी कर्ज ना रखा। ईद गदीर पे भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वाले, अच्छा देखें, अल्लाह ताला अपने कवानीन बदलता नहीं है। ला तब्दीला फितरत अल्लाह ला तब्दीला। हाँ, हमारे साथ इस वक्त यास्मीन कौसर साहिबा टेक्सास से मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम। या अली मदद, मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला आपको सलामत रखे। ईद मुबाहिला की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक, आपको भी मुबारक। सलामत रहें। करबला मौला में आपकी आवाज़ गूंज रही है, करबला की तरफ रुख करें, दिल पे हाथ रख के नज़रें झुका के अपने मौला को सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल रसूलीन, अस्सलामु अलैका इब्न ख़ातिमुल ज़हराए सैयदती। अस्सलामु अला हुसैन व अला अली हुसैन व अला औलादि हुसैन। अस्सलामु अलैकुम बाबुल खालिद, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अस्सलामु अलैका जमीअ शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अली मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीका फरज अल्लाहुम्मा अज्जिल इलाही बाकी मौला हुसैन, इलाही बाकी बाबू फरज, इलाही बाकी बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा मुझे जल्द से जल्द बुलाए, अपना दर्द दिखाए, मेरा नाम भी जब बुलाए। इलाही बाकी मौला हुसैन, इलाही बाकी बुलाए, हमारी सारी परेशानियां सबकी और तुम्हारे शफा करना। इलाही बाकी मौला हुसैन, इलाही बाकी बाबुल खालिद से आपके साथ कामयाबी भाई साहब, आप हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारे आने की दुआ कीजिए। इलाही मौला आपको बार बार करबलाए मौला आने का शरफ अता फरमाए, आपकी मुश्किलात आसान फरमाए, सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, दुनिया आखिरत में कुर्ब जवार अहले बैत अलैहिमुस्सलाम नसीब रहे। मौला आपको पर रहमत बरकतें नाजिल फरमाएं। आपका अपना प्रोग्राम है, नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। सलामत रहें, आबाद रहें। फ़ी अमानिल्लाह, मौला की अमान में रहें। फ़ी अमानिल्लाह। दिन करीब होते जा रहे हैं मुहर्रमुल हराम के, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन और कम से कम 9 दिन रहते हैं। यानी अगर 30 का चाँद हो गया तो पहली तारीख हो जाएगी मुहर्रम की, 10 दिन बाद, और अगर 29 का चाँद हुआ तो 9 दिन बाद पहली मुहर्रम की हो जाएगी। और इस मुनासबत से आज अगर हफ्ते का दिन है और 20 ज़िलहज है तो तकरीबन भी 7 दिन बाद हफ्ता आएगा। इतवार, पीर या तो मंगल को पहली मुहर्रम हो जाएगी, या अगर 30 का चाँद हुआ तो बुध की तारीख में पहली मुहर्रम की हो जाएगी। और आशूर तकरीबन जुमेरात या जुम्मे का ही बनेगा अगर इसी हिसाब से देखा जाए तो।
बहरहाल मौला सबको आने की तौफीक अता फ़रमाए जो आना चाह रहे हैं, और जिनकी जो मुश्किलात हैं अल्लाह तबारक व तआला मुश्किलात को हल फरमाए। कहना आसान है, करना मुश्किल हुआ करता है, और मुश्किल काम हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम की तवस्सुल से आसान हो जाया करता है। लिहाजा हम आपके लिए दुआ गो हैं कि मौला हम सब को अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलायत पर साबित कदम रखें और मुश्किलात हमारी हल हो जाएं। जिस तरीके से वक्त चल रहा है और हालात चल रहे हैं, एक वक्त था कि हम तारीख़ पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह आप लोग हम सब मुताला करते हैं, तो देखते थे लम्हे कि फ़लाने सन में ये हुआ, फ़लाने सन में ये हुआ, फ़लाने सन में ये हुआ, और फिर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ वाक़यात जल्दी से होते चले गए। कुछ तारीख़ों में आप देखेंगे मसलन बादशाह किसी मासूम अलैहिस्सलाम के दो मासूमों के ज़माने में एक बादशाह रहा, कभी हर मासूम अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुख्तलिफ बादशाह हैं, लेकिन कुछ मासूमीन अलैहिस्सलाम ऐसे भी हैं कि उनके ज़माने में बादशाह जो हैं वो 4-4, 5-5 तब्दील हुए, एक दूसरे को कत्ल करते रहे और आगे बढ़ते रहे। तो वहाँ पे तब तारीख़ ज़ाहिरी बात है जल्दी अपने औराक तब्दील करती है, तो लिहाजा ये भी ज़माना वही है कि हर दूसरे दिन कोई नई बात, कोई नई कैफियत और नई हालत पैदा हो रही है। तो इन हालात के अंदर हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौजूद हैं, आप सब के लिए दुआ गो हैं। खुदावंद मुताल आप सबको जल्द करबलाए मौला आने की तौफीक अता फ़रमाए। देखें हालात बदलते रहेंगे, वाक़यात बदलते रहेंगे, इन सब तब्दीलियों में, इन सब परेशानियों में हम ज़िक्र के ज़रिए से, मौला के नज़र दिलाने के ज़रिए से, अज़ादारी के ज़रिए से, उनकी खुशी के ज़रिए से, महफ़िल के ज़रिए से, ज़ियारत के ज़रिए से, उनका नाम लेकर मदद पुकारने के ज़रिए से हम अपनी ज़िंदगी में अहले बैत अलैहिस्सलाम को हमेशा साथ रखना चाहते हैं, और यही हमारी बका का सबब है। तो लिहाजा ये बका हमारे साथ साथ रहे। प्रोग्राम हमारा जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, और मेरे लिए जो वक्त मुख्तस था वो तमाम हुआ चाहता है, तो अब मेरे बाद आप सबकी खिदमत के लिए पहुंच रहे हैं मौलाना सैयद खादिम अब्बास हुसैनी साहब। वो आप सबको अहले बैत अलैहिस्सलाम से वसल करेंगे, और आप लोगों को अहले बैत अलैहिस्सलाम के यहाँ कॉल करने की दावत है कि आप इस प्रोग्राम में कॉल कीजिए और इत्तिसाल पैदा कीजिए, रब्त पैदा कीजिए, ताकि आपकी आवाज़ मौला तक पहुँचे। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मौला से प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में हाज़िर खिदमत है और इस प्रोग्राम के पार्ट 2 में बंदे हकीर आप हज़रात से मुखातिब हूँ और पार्ट 1 में जैसे आप समाअत फरमा रहे थे आली जनाब अल्लामा सैयद जावेदुल हसन रिज़वी साहब क़िबला आप लोगों से नहायत ही शाइस्ता अंदाज़ में गुफ्तगू फरमा रहे थे और ज़ाहिर है कि गुफ्तगू का सिलसिला बाद अज़ गदीर मुबाहिले की तरफ बढ़ जाता है। अलबत्ता कि गदीर के ऊपर भी अगर गुफ्तगू हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये मौका गदीर का भी है और साथ में मुबाहिले की भी बहरहाल मौका है। और ख़िदमत में अर्ज़ करूँ कि मुबाहिला भी एक नहायत ही मुहिम तारीख़ी, हदीसी और क़ुरआनी दिन है। यानी इस अंदाज़ में कि उस हकीकी दीन और उन हकीकी शख्सियात जो फ़िल हकीका इस्लाम के पेशवा थे, उनकी अफजलियत को दुनिया के ऊपर वाज़े करने का दिन ईद मुबाहिला है। और गदीर भी इसी तरीके से है। लेकिन ज़ाहिर है कि ईद मुबाहिला में जैसे पहले प्रोग्राम के पहले पार्ट में आप समाअत फरमा रहे थे कि नजरान के ईसाइयों के साथ जो मसीही मज़हब से अपने आप को निस्बत देते थे, हकीकी मसीही मज़हब तो नहीं थे, क्योंकि अगर हकीकी मसीही मज़हब का हो तो उसको इस्लाम का अंदाज़ा हो जाता है। क्योंकि ज़ाहिर है कि जो हक़ और हक़ानियत हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान कर दी थी कि मेरे बाद जज़ीरा अरब में से एक शख्सियत तशरीफ़ लाएंगे जिनका नाम अहमद होगा और वो ऐसी शख्सियत होगी जो अल्लाह का आखिरी नबी होगा। और ये सारे तालीमात जो हम मुसलमान जानते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हयात तय्यबा में बाकायदा जो है वो अपने ईसाइयों को ये चीज़ें, अपने हवारियों को ये चीज़ें तालीम फरमाई थी और हवारियों ने भी बाकी लोगों को ये बता दिया था। लेकिन ज़ाहिर है कि जैसे हर कौम में कुछ लोग पैदा हो जाते हैं फसादी टोला, और कुछ लोग जो है वो ज़ाहिर है दुनिया को हुसूल दुनिया के लिए जो सैयदुल मुरसलीन के कौम में भी बाकसरत पैदा हो गए थे और उन्होंने बाद रसूलुल्लाह जो जुल्म किया था, उसी तरीके से ज़ाहिर है कि हज़रत मसीह के कौम में भी कुछ लालची, कुछ हासिद और कुछ शूम मिजाज लोग पैदा हुए और उन्होंने पूरे निज़ाम को जो है वो बिगाड़ दी। वगरना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बाकायदगी से बता दिया था कि जज़ीरे अरब में उस शख्स की विलादत होगी जिनका नाम अहमद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वालिही। और उसके बाद जो है, लेकिन ज़ाहिर है इन लोगों ने कहाँ कबूल करना था, उन्होंने अपनी किताबों में तहरीफ कर ली, वो चीज़ें जो है वो हटा दी और एक और यानी जो हक़ और हक़ानियत का जो दीन था उसको उन्होंने बिगाड़ दिया तहरीफ़ कर करके। और यहाँ तक इन्होंने कहा कि ईसा तो कोई नबी ही नहीं थे, बल्कि वो तो खुदा के बेटे थे, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। और इसी तरीके से पूरा ढांचा जो है वो दीन का इन्होंने चेंज कर दिया पादरियों ने, और पादरियों ने ऐसी तबाही मचा दी कि पूरे लोगों को जो है वो गुमराह कर दिया। यानी दकीकन जैसे हर नबी के बाद कुछ चीज़ें रुनुमा हो जाती थी, ख़ुद सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिही के कौम में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें रुनुमा हुई कि अक्सर मुसलमान जो है वो आज गलत इस्लाम के पैरोकार बन चुके हैं हकीकतन। उसी तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने सही बताया था, यानी ख़ुद जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के तालीमात में तो कोई मुश्किल नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर है कि इन लोगों ने दीन को कुछ इस तरीके से पेश किया कि उसमें उन्होंने सबसे पहले बुनियादी अक़ीदा यही रख दिया कि एक खुदा है और एक जो है उनके बेटे हैं।
जाते हैं कॉलों की तरफ। फराज साहब हमारे पहले कॉलर है मीरठ से। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाल्लाह इस वक्त आपकी आवाज़ मेरठ इंडिया से करबला मौला तक पहुंच रही है। मैं चाहता हूं कि मौला की खिदमत में आप सलाम कीजिए, कोई दुआ भी करना चाहे वो भी कर लीजिए। बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह मैं आपकी अज़ादारी करें इंशाअल्लाह। मैं इसमें बात करें इंशाअल्लाह वहाँ पे मौला वो ऐसा इलाही आमीन, इलाही आमीन। फराज साहब मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए और खुसूसी आपकी वालदा के सेहत के लिए दुआ गो है और तमाम मोमिनीन जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है आप भी दुआ फरमाइए। फराज साहब की वालदा जो है वो अलील है और उनके लिए दुआ गो है कि मौला बेहक़ के हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा व हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम उनको सेहत कामिला व आजिला नसीब फरमाए और उनका साया अपने बच्चों के ऊपर देर पा कायम व दायम रखें इंशाअल्लाह अज़ीज़। और इस फैमिली के जो भी शरई हाजात है मौला कबूल व मकबूल फरमाए और सिर्फ गम हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में इनको मशगूल रखे, सलामत रहें, मौला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। और माशाल्लाह चूँकि माविन भी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के, जहाँ तक हो सके हमारे नंबर को मज़ीद भी दोस्तों के साथ शेयर करें। बल्कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि इस प्रोग्राम में मोमिनीन जो है वो अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए नज़र करते हैं, तो आप भी इंशाल्लाह इसमें शामिल होना चाहते हैं। जी जी जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अच्छा शुहदाए करबला 72 शुहदाए करबला में से किसी का नाम ले लीजिए या 12 इमामों में से किसी का नाम ले लीजिए ताकि एक तवस्सुल जो है वो कायम हो सके। किसका नाम लेना चाहेंगे आप? मौला अब्बास सलाम, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मौला सलामत रखे आपको, अल्लाह आपकी नज़र को कबूल मकबूल फरमाए और आपकी वालदा को सेहत कामिला नसीब फरमाए और जो भी आपकी मज़ीद हाजात है मौला कबूल मकबूल फरमाए। सलामत रहें, मौला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। शुक्रिया, सलामत रहें आप, खुदा हाफिज़। जी माशाल्लाह फराज साहब थे हमारे साथ मेरठ इंडिया से और इनकी वालदा चूँकि अलील है उनको ज़ाहिर है जो उनके मशाकिल है मौला उनको अटैक है, मौला उनको सेहत कामिला वाजिला नसीब फरमाए। और तमाम जितनी भी इस वक्त हमारी आवाज़ समात फरमा रहे हैं, जहाँ पर भी कोई मरीज़ है, अलील है, ख़ुद मरीज़ है, खुदा न खास्ता या घर में से कोई अलील है, सबको मौला बेहक़ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम सेहत कामिला वाजिला नसीब फरमाए। तो गुफ्तगू का सिलसिला हमारा ज़ाहिर इस उन्वान से था कि मुबाहले के उन्वान से, और जहाँ पर नजरान के ईसाइयों के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। ज़ाहिर है ये लोग जो है जो पादरी थे ये लोग ख़यानत कर रहे थे अपने ईसाइयों के साथ, और ये ख़ाइन मिजाज लोग जब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दुनिया में तबलीगी खतूत भेजे और सबको इस्लाम की दावत दी, तो उसमें से कुछ ये भी थे कि जिन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया था। माशाल्लाह नेक्स्ट कॉलर हबीबा हुसैन साहिबा कनाडा से इस वक्त हमारे साथ कॉल लाइन पे है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम जी, बिस्मिल्लाह, सलाम अर्ज़ करें मौला की खिदमत में। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैहि हुसैन व अली इब्न हुसैन व औलादिल हुसैन व असहाबिल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। मेरे मौला मेरे आका चारदार और मुक़द्दस के सदक़े सब लोगों की हाजत को बराबर करे, सब लोगों की मुश्किलात और परेशानियों को दूर कर दे, मेरे बच्चों की हाजत को बराबर करे,
सब मुसाफिरों को उनकी मंजिल पर पहुंचा दे। तमाम बीमारों को बहक़ आबिदीन बीमार सेहत कामिल अता करे। मौला भाई साहब आप सब लोगों को अजर दे दे, खैर दुनिया व आखिरत अता करे। बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए, और जहाँ तक हो सके दीगर मोमिनीन के साथ भी नंबर को शेयर फरमाते रहिए। सलामत रहे, मौला के उज़ावान में रहे। शुक्रिया। तो मुबाहले के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी है, और यहाँ तक कि ये लोग भी उन्हीं में शामिल थे कि जिन्होंने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालिही के पैगाम हक़ के मुनकर हुए। और ये जो ईसाई थे, इनके कुछ पादरी थे, उलमा थे, और इन्होंने यही कहा कि जो हमारे आबा व अजदाद का दीन है यही सही दीन है, और हम इस पर अमल कर रहे हैं और खुश है, और हमारी दुआएं भी कबूल होती है वगैरह वगैरह। इन्होंने जैसे एक तवहुमात जो इन्होंने बरकरार रखे हुए थे, ये सिलसिला जारी रहा। और बात यहाँ पर पहुँची कि मनाजरा हुआ हज़रत सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिही और इन नजरान के जो है वो इन लोगों के दरमियान। कुरान करीम ने भी इसकी तरफ इशारा फरमाया कि जिसमें ये मनाजरा जब हुआ, और मनाजरे में ज़ाहिर है कि ये लोग मानने वाले तो थे नहीं, जो अपने गलत अकायद थे और लोगों को भी गुमराह किया हुआ था, ख़ुद भी गुमराह थे, शयातीन मिजाज लोग थे, इन्होंने ज़ाहिर है कि कबूल नहीं करना था। और दलाइल वग़ैरह हुए, लेकिन दलाइल उन्होंने कबूल नहीं किए और इन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो आखिर में बात जो है वो मुबाहले पर पहुंची, और वहाँ मुबाहला यही था कि ज़ाहिर है कि वहाँ पर नफरीन की जाती है। मुबाहले में यही चीज़ें होती है कि अगर जो नाहक हो, अल्लाह जो है, यानी असल में हकीकतन बहाला, और बहाला यानी दूर, आज़ाद कर देना इस मानों में है, यानी आज़ाद करना यानी रहमत खुदा से आज़ाद कर देना। लेकिन बहरहाल असल में कॉन्सेप्ट यही है कि उनके लिए जो है ये कहा जाता है कि अब आपके ऊपर अल्लाह जाने और आप जाने, अगर इसका हम तर्जमा करें, या जो भी बहरहाल मुख्तलिफ उलमा ने मुख्तलिफ़ तरीके से तर्जमे किए हैं। लेकिन बात यहाँ पर पहुँची कि अब यहाँ कुरान करीम ने जो तय पाया उसका एक इशारा दिया कि नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। ये आयत करीमा जिसमें तय हुआ कि आप अपने बच्चों को बुलाइए, हम अपने बच्चों को बुला लेंगे, और आप जो है वो अपनी औरतों को बुला लीजिए, हम अपनी औरतों को बुला लेंगे। क्योंकि मुबाहला होना था ना, आप अपनी जानों को बुला लीजिए, हम अपनी जानों को बुला लेंगे। तय ये हुआ कि अब इस हालात में आके नफरीन करेंगे और फिर जो है वो बात ख़त्म हो जाएगी। फ़ैसला जो है वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। जो लोग नाहक होंगे उनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आ जाए। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालिही ने, जैसे हमने अर्ज़ किया कि अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम का जो मकाम है, हालांकि सब वहाँ मौजूद थे, रसूलुल्लाह के ज़ौजात भी मौजूद थीं, रसूलुल्लाह के बाकी असहाब भी मौजूद थे। ये जो आजकल के दौर में बड़े बड़े कहते हैं ना, बड़े दावे से कहते हैं बाद रसूल लो, क्योंकि उसके बाद कोई अगर नबी होता तो फलाना होता, ये सारे वहाँ मौजूद थे। नजमुल हसन भट्टी साहब मुल्तान से माशाल्लाह कॉल लाइन पे है इस वक्त। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। भट्टी साहब कैसे मिजाज है आपके? सलामत रहे। इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मौला में है, सलाम अर्ज करें और कोई दुआ भी करना चाहें। जी वालेकुम। बस यही है कि बाकी मोहम्मद अल्लाह वो है कि मेरी ज़रा तबीयत सही नहीं थी, बस दिल ज़रा घबरा रहा था। बाकी मोहम्मद आले मोहम्मद के सदके मैं तो ये कहता हूँ कि 12 इमाम मसूम के सदके वास्ते तबीयत भी सही हो जाए और से मिल जाए। आजकल हुसैन इस्लाम से बस तबीयत सही हो जाए, हर बार भी सही हो जाए। आप भी जरा मेरे लिए दुआ कीजिए भाई जान। बस जरा ना मेरा वो जरा नज़ला वगैरह या वो रहता है ना दिल, जिसकी वजह से वो घबराहट हो जाती है मुझे।
जी जी लेकिन यकीन है मौला पे, यकीन है बहक मोहम्मद आले मोहम्मद पे यकीन है, हमें यकीन है तो हम फोन करते हैं। जी जी और इसी वजह से आप सबको ये कहता हूँ कि भतीजों भाई वगैरह के लिए सबके लिए मैं दुआ गो और मैं दुआ मांगता हूँ कि मौला मुझके कुछ इमाम हुसैन के वास्ते सबको अपनी सेहत कामला और रोजगार अता फरमा दे के मोहम्मद आले मोहम्मद के इलाही आमीन इलाही आमीन। और बात के ये कि बस आप अक्सर में अपने लिए जन्नत खाली कर बात के मोहम्मद आले मोहम्मद के साथ, ये मेरे बस यही चाहत है दिल में। इलाही मौला आपको सलामत रखे। अल्लाह नजमुल हसन भट्टी साहब को जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सब जो है वो आमीन कहें। नजमुल हसन भट्टी साहब अलील हैं, मौला इनको सेहत कामिल आवाज़ अल्लाह नसीब फरमाए और पूरी भट्टी फैमिली और इनके खुसूसी जो इनके भतीजे और भाई है मौला उनके रिस्क में इजाफ़ा फरमाए और इनके जो भी मुश्किलात हैं मौला उसमें आसानी फरमाए और इन सब को करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। शुक्रिया आपका भट्टी साहब, मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। शुक्रिया आपका जी। माशाल्लाह चूँकि ज़ाहिर है तमाम मोमिनीन इस वक्त जो भी हमारे साथ खुसूसी तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी से हमारे प्रोग्राम को देखते हैं या कॉल्स करते हैं, उन सब के लिए दुआ गो है, अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। तो बात का सिलसिला यहाँ तक पहुँचा कि आखिर में मुबाहला तश्कील पाया जिसमें शर्त ये थी कि आप अपने बच्चों को ले आइए, हम अपने बच्चों को ले आएंगे और जो आपकी औरतें हैं वो भी आ जाए, हम अपनी औरतों को ले आएंगे और अपनी जानों का भी इसी तरह कहा गया। समाना खातून साहिबा नोएडा इंडिया से इस वक्त हमारे साथ कॉल लाइन पे हैं। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह इस वक्त आपकी आवाज़ इंडिया से करबला तक पहुंच रही है जी। और मैं चाहता हूं कि आप अपने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में सलाम अर्ज़ करें। आवाज़ जी 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 थोड़ा आवाज़ साफ नहीं आ रही है आपकी। जी बेहतर हो जाएगा। आप जो है मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ करें, कोई दुआ भी करना चाहे बिस्मिल्लाह फरमाएं। हेलो जी जी सिस्टर आप मौला को सलाम कीजिए, कोई दुआ भी करना चाहे बिस्मिल्लाह। अच्छा अच्छा पर इतना मुझे समझ है कि मैं शुरू करूं। हाँ हाँ शुरू करिए आप बिस्मिल्लाह। जी 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 अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम अला हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला असहाब हुसैन, अस्सलाम अला हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला असहाब हुसैन, अस्सलाम अला हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला असहाब हुसैन। मेरा वाला खुदाई नज़ीर की आवाज़ हमारी वहाँ तक पहुँची दिल का जरिया बने है, मौला उनको अपने शान निशान इसका कदर अदा करेगा। मेरे आका आप हमारे दिल के हाल से जिस वक्त हमारी परेशानी से वाकिफ हैं, आपका ही दर हमें दिखाई दे रहा है इस वक्त में। मेरे मौला मेरी भाभी को शिफा अता कर दीजिए, आप सबसे बड़े तबीब हैं, आप फ़ख्र ईसा हैं। मेरे मौला आप सबसे बड़े तबीब हैं, आपको पता है आपके अलावा हमारा किसी कोई साथ नहीं है, हम गुनहगार आपके दर के अलावा कहीं नहीं जा सकते। मेरे मौला हमारी भाभी को लौटा दीजिए, वापस कर दीजिए। अल्लाह सभी बीमारों को शिफा अता कर दीजिए, हमारी भाभी को शिफा अता कर दीजिए, उसका मकसद अता कर दीजिए, उनके बच्चे को यतीम होने से बचा लीजिए मेरे मौला। जी अब लगता है कि अल्लाह खैर इलाही आमीन आमीन। मेरा क़िबला बस ये दुआ करेगा। मैं भाभी को डॉक्टर ने जवाब दिया, बस एक जगह से बाहर आया है कि मुझे शिफा मिलता है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मौला आप लोगों की तमाम दुआओं को पूरे दिन हमारे ऐसे रोते रोते गुजर रहे हैं हमारे। उनको देख के आईसीयू वेंटिलेटर पे हैं वो, एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है, इस्तिखारा करवाया मैट्स ले जाने के लिए हॉस्पिटल वहाँ के लिए आया है। वहाँ के डॉक्टर्स जो है वो कह देंगे हाँ ले आओ, कल वहाँ की रिपोर्ट्स लेके जाएंगे, कल वो बता देंगे कि हाँ ले आओ। मौला हुसैन इंशाल्लाह रहम फरमाए और खुसूसी तौर पे समाना खातून की जो भाभी है वो बीमार है
اور اس وقت جو ہے وہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے ان کے لیے خصوصی طور پہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مولا ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ کے لیے دعا کرے کہ مولا ان کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے اور انشاءاللہ خیر عافیت کے ساتھ اپنے گھر واپس آ جائیں۔ مولا آپ سب کو اپنے امان میں رکھے، شکر گزار ہے، اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہے مولا قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ بحق امام حسین علیہ السلام۔ شکریہ آپ کا، شکریہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی ماشاءاللہ مومنین کرام اس وقت جو بیمار ہے خصوصی طور پر ان کے لیے خصوصی دعا گو ہے، مولا سب مریضوں کو بحق امام سجاد علیہ السلام شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اور عرض کریں کہ کربلا وہ مقام ہے کہ جہاں پر دنیا سے آپ کسی عنوان سے بھی اگر آپ دنیا سے نا امید ہو جائیں نا تو مولا امام حسین علیہ السلام سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا اگر کوئی مریض ہے وہ حتماً شفا یاب ہوگا، اس کی گارنٹی نہیں، کہیں پر بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو آپ کے دل کو جتنی تکلیف ہونی ہے، جو آپ کے دل ہے وہ آپ کے دل کو کنٹرول کر لے گا۔ شائستہ بطول صاحبہ مظفر گڑھ سے اس وقت ہمارے ساتھ کال لائن پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی ماشاءاللہ اس وقت آپ کی آواز مظفر گڑھ سے کربلائے معلیٰ تک پہنچ رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ مولا کی خدمت میں سلام عرض کریں، کوئی دعا بھی کرنا چاہیں، بسم اللہ۔ جی ضرور۔ جی زیارت پڑھیں آپ ماشاءاللہ، یا میں پڑھوں آپ کی طرف سے؟ جی میں پڑھ لیتا ہوں، آپ پھر دعا کر لیجئے گا پھر بعد میں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کوئی دعا ہے اس وقت تو وہ بھی کر لیجئے گا، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کے رزق میں وسعت عطا فرمائے، اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہے مولا قبول و مقبول فرمائے اور کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ آپ اس پروگرام میں جو نظر کرتے ہیں، نظر آپ کر چکی ہیں؟ موبائل چیز اچھا چلیں آپ اس پروگرام میں جو ہے نا مومنین جو ہے وہ نظر کا ارادہ کرتے ہیں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تو آپ بھی اس میں شامل ہونا چاہتی ہیں انشاءاللہ؟ دیکھیے سر میں نا آلریڈی اس میں شامل ہوں، اچھا لیکن چاچو کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جس وجہ سے میں پریشان تھی، تو لمبے ٹائم کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے۔ اچھا کن کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ میرے چاچو ریاض حسین، مطلب میں ان کے لیے دعا کرواتی تھی نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ شائستہ بلوچ صاحبہ کے چچا فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتح اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ، اور سلامت رہیں آپ۔ جی ماشاءاللہ چونکہ تمام مومنین اس وقت جو ہے وہ جہاں تک ہماری آواز جاری ہے، آپ بھی ساتھ ساتھ میں جو ہے دعائیں کریں، جو بیماروں کے لیے دعائیں کی جاتی ہے اور جو مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھا جاتا ہے، اس میں آپ اپنے مرحومین کو بھی شامل کر لیجئے اور فاتحہ جو ہے وہ ضرور پڑھیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں پر جتنی بھی مومنین تشریف لا رہے ہیں مومن ہیں، اور مولا امام حسین علیہ السلام سے ان کا واسطہ ہے اور انہی کی محبت میں اس پروگرام میں شرکت فرماتے ہیں۔ مولا آپ سب کو اپنے امان میں رکھے، اور جن مومنین کے خصوصی حاجات شرعیہ ہے ان کے لیے خصوصی دعا گو ہے، مولا سب کے حاجات کو قبول فرمائے۔ مباہلے کی عنوان سے ہماری گفتگو تھی، تو وہاں پر جب مباہلہ ہوا تو سب سے پہلے جہاں بات یہ ہوئی تھی کہ آپ اپنے بچوں کو لے آئیے، ہم اپنے بچوں کو لے آئیں گے، تو ظاہر ہے صحابہ بھی موجود تھے، صحابہ کے بچے بھی موجود تھے۔
माशाल्लाह ज़ीशान अली लाड़काना से इस वक्त हमारे साथ कॉल लाइन पे हैं। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात को सलाम पेश करते हैं। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम या कदीरत अल बहरात। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई दुआ भी करना चाहे कर लीजिएगा। बस अल्लाह ताला हम सबको अरबाइन की ज़ियारत नसीब फरमाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की। इलाही आमीन इलाही। मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। मौला आपको भी सवाए में हुसैन की और कोई गम ना दे। इलाही आमीन। आपको भी सलामत रहें आप। मौला आपकी तमाम अल्लाह ताला को कबूल। शिया असना अशरी की हिफाजत फरमाए। इलाही आमीन इलाही आमीन। अहल बैत के नक्श के कदम पर चलने की तौफीक अता करे फरमान के मुताबिक। इलाही आमीन। सलामत रहें आप। ईद कदीर भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मन कुंद मौला फहद अली मौला। ठीक है क़िबला दुआ में याद रखिए। जी मौला आपको सलामत रखे। शुक्रगुजार है। सलामत रहें आप। खुदा हाफिज। जी माशाअल्लाह मोमिनीन किराम के जो खुलूस है इखलास के साथ दुआएं फरमाते हैं। मौला सबकी दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह बिहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि ईद मुबाहला वो मौका था कि जहाँ फरमाया कि अपने बच्चों को ले आओ, तो सहाबा भी मौजूद है, सहाबा की औलादें भी मौजूद है, लेकिन हज़रत रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि ने हसनैन शरीफ़ैन अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया, यानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम। और जब बात आई कि अपनी औरतों को ले आओ, तो रसूलुल्लाह के ज़ौजात जो है ना वो मौजूद थी। ये जो आजकल के इस दौर में कहते हैं ना कि वो रसूल की ज़ौजा और ये वो, नहीं, किसी को नहीं लेके गए, बल्कि इंतखाब जो है वो हज़रत सिद्दीक़ ताहिरा हज़रत ज़हरा मरज़िया सलावतुल्लाह अलैह का इंतखाब हुआ और मुबाहले में शामिल हुई। और जब बात आई कि तुम अपने नफ्सों को लेके आओ, अपनी जानों को लेके आओ, और हम अपनी जानों को लेके आते हैं, तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि ने अपने भाई हज़रत अमीर अल-मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया। यानी ये हस्तियाँ जो पांच थी ना, यही पांच हस्तियाँ, यानी ख़ुद सरवर कायनात अमीर अल-मोमिनीन हज़रत ज़हरा और आपके दो फ़र्जंद, ये मुबाहले के मैदान में वारिद हो गए। गौर कीजिए कि ऐसा तारीख़ी नक्शा है, ऐसा एक तारीख़ है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। और पहले में भी वो मौलाना साहब जो है, जो इब्तिदा में थे, वो ज़मख़शरी के किताब कशाफ़, जो तफसीर कशाफ़ के नाम से मशहूर है, उसका हवाला दे रहे थे कि ज़मख़शरी ने भी लिखा है कि यही पांच हस्तियाँ थी। और इसी तरीके से दुर्र मंसूर व अमसाले दुर्र मंसूर में भी इसी तरीके से लिखा है कि यही पांच हस्तियाँ थी, बल्कि इसके सुन्नी तसन्नुन व तशय्यो का जो मुत्तफ़िकुन अलैह मसला है वो यही है कि यहाँ पर मुबाहले के मैदान में यही पांच हस्तियाँ जो अजीम हस्तियाँ हैं, इनको साथ लेके गए। और ये वही हस्तियाँ थी जो हदीस किस्सा वाली हस्तियाँ हैं, होम फ़ातिमा व अबूहा व बालुहा व बनूहा, ये वही हस्तियाँ थी। और इन्हीं हस्तियों के वजह से अल्लाह ने कायनात खल किया, और इन्हीं हस्तियों की मार्फत का हुक्म है। और यही हस्तियाँ हैं कि जो इस कायनात बल्कि आवालिम को खल करने का मकसद इन्हीं हस्तियों की वजह से है। लेके गए और वहाँ पर जो उनका बूढ़ा पादरी था, वो आदमी समझदार था। उसने जब इन हस्तियों को देखा ना, उसके ऊपर वो नूर आया हुआ, और उसको अंदाज़ा हो गया कि अगर इनके साथ हमारा मुबाहला हो गया तो हम तो क्या, ईसाईयत जो मज़हब है, ईसाईयत दीन का ख़ात्मा हो जाएगा। अल्लाह ऐसा अज़ाब हमारे ऊपर नाजिल कर देगा कि हम में से कोई भी नहीं बचेगा, बल्कि जो दीन है ना वही नहीं बचेगा, ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो ऐसी हस्तियाँ, ऐसे मोतबर शख्सियात, इनके साथ मुबाहला जो है वो
ضرر کے علاوہ, नुकसान के अलावा इसका कोई समरिया जो है वो हमें हासिल नहीं होगा। तो इसने जो है ना अपने बाकी ईसाइयों को समझाया कि कहीं गलती से भी इनके साथ मुबाहला करने की जो है ना वो जुर्रत न करे कोई। अगर इनके साथ मुबाहला कर दिया हमारा पूरा जो ये दीन है जिसको बड़ी मुश्किल से हम सैकड़ों सालों से बचा के आ रहे हैं, यही ख़त्म हो जाएगा। कि दर हकीकत वो तहरीफ शुदा दीन जिसके बारे में मैं इब्तिदा में आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, और उन्होंने वहाँ से फ़रार इख्तियार कर ली। बहरहाल वो तो फ़रार हो गए, लेकिन मुसलमानों के ऊपर हुज्जत तमाम हो गई, और वो हुज्जत ऐसी तमाम हुई कि अगर एक पैगाम दिया कि अगर बच्चे हैं तो इन बच्चों की तरह बच्चे नहीं हैं, अगर ख़वातीन है तो इस खातून की तरह कोई खातून नहीं है, और अगर बात आ जाए नफ्स रिसालत की तो हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी कोई शख्सियत नहीं। और यही कायनात की वो अजीम शख्सियात जिसका अल्लाह ने दर्स दिया। लेकिन अफसोस ये है कि जो मुसलमान हैं उन्होंने आज भी इसी पर बहसें होती है। मैं कुछ दिन पहले एक बदबख्त को देख रहा था, किसी एक शिया मुनाजिर के साथ मुनाजरा कर रहे थे। तो ज़ाहिर है ये जो खुलफा के जो फ़रार वग़ैरह के किस्से हैं, ये तो इन्होंने ख़ुद अपनी किताबों में भी लिखे हैं ना। तो जो जंगों से उनके जो फ़रार हुए, मिसाल के तौर पे खैबर से या बदर से जैसे ये फ़रार हो गए हैं, और उन्होंने ख़ुद लिखा भी है। तो ज़ाहिर है वो शिया मुनाजिर जो था वो उन्होंने यही बहस की कि ये आपकी किताबों में लिखा है। तो वो जालिम जो था, और इनका अक्सर भी यही है कि इन्होंने जो है ना वो अहलुल बैत की तौहीन करना शुरू कर दिया। तो इनके लिए यही है कि भाई आप लोग अगर अपने आप को, एक तो यह है कि इंसान अगर अपने कुफर का ऐलान कर दें कि भाई हम सुन्नत रसूलुल्लाह पर चलने वाले नहीं हैं, फिर तो बात ही ख़त्म। कितने सारे लोग हैं जो कहते हैं, लेकिन इन बदबख्तों ने इस तरीके से दीन इस्लाम को जो नुकसान पहुँचाया, और फिर जुल्म को, जो जुल्म अहलुल बैत के ऊपर हुआ, इन्होंने उस जुल्म की वकालत की है। दुआए ज़ियारत आशूरा और ज़ियारत वारसा और वग़ैरह दूसरी ज़ियारात में भी ये है कि अल्लाह यानी चंद लोगों से, चूँकि ये जो है ये हदीस के तौर पे ये आई है ना, आइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम से हैं ये ज़ियारात, तो वहाँ पर कुछ लोगों पर जो है वो लान की गई है। एक तो ये कि जो ख़ुद कातिल है, दूसरे वो है कि जिन्होंने इन कत्ल में हिस्सा लिया, मदद की, चाहे छोटी मदद की या बड़ी मदद की, और एक तबका लोग वो है जो इनके ऊपर राज़ी है। ये तीनों के ऊपर जो है वो लानत की गई है। तो ये जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये लोग इन जुल्मों के ऊपर राज़ी है। ज़हरा साहिबा फैसलाबाद से हमारे साथ कॉल लाइन पे है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ कीजिए। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका व अबीका, अस्सलामु अलैका व अला उम्मिका व अख्तिका, अस्सलामु अलैका व अला अल-अइमाद मुबानिका, अस्सलामु अलैका या साहिब तमात साकिबात, अस्सलामु अलैका साहिब मुसीबात वातियाती, या कतसाबा किताबिल्लाह फीका मौजूद रसूलुल्लाह फीका मतूबन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला हुसैन बादशाह मौला गाजी अब्बास अलमदार, आपके बारकतस मुकद्दस में सलाम पेश करती हूँ, और 72 शहीद करबला की बारकतस मुकद्दस में सलाम का नजराना पेश करती हूँ। और अल्लाह पाक से इमाम हुसैन के वसीले से दुआ करती हूँ। इमाम ज़माना का फरमान है कि अल्लाह पाक से बीबी ज़ैनब का वसीला मांग के मेरे ज़हूर की दुआ की जाए। अल्लाह पाक आपको हुसैन बादशाह की आकाज़ादी मौला अब्बास मौला हसन की आकाज़ादी बीबी ज़ैनब का वास्ता, बीबी रुक़ैया बीबी कलसूम का वास्ता, सैयदादियों के बाजार जानी का वास्ता, बारिया का के ज़हूर में ताजीब पैदा फरमा, इमाम ज़माना की सेहत और सलामती फरमा, मेरे मौला के ज़हूर में आसानियाँ पैदा फरमा, और इनके वसीले से 5-5-14-72 के वसीले से 1 अकराम के वसीले से, अल्लाह पाक इमाम हुसैन के वसीले से, फुतुस को शिफा देने वाले हुसैन, अहूर को माफ़ करने वाले हुसैन, राहिब को उड़ा देने वाले हुसैन, अल्लाह बादशाह हुसैन के वसीले से सबकी परेशानियां दूर फरमा, सब बीमारों को शिफा दे।
जितने बीमार हैं नजफ अब्बास को शुगर से शिफा दे, हबीब अली को ब्रेन कैंसर है उसे शिफा दे, जो बीमारियां हैं वो मौला दूर कर। मौला हुसैन बादशाह हबीब अली इस वक्त हॉस्पिटल में है, उसकी मदद फरमाइए, उसे शिफा दे दीजिए। मौला हुसैन बादशाह वो आपके मानने वाला है, आपके ज़हरा को मानता है। मौला हुसैन उसकी मदद फरमाइए, वो खैर आफियत से घर वापस आ जाए। मौला हुसैन नजीफ अब्बास को शिफा दे, मौला हुसैन शमशाद अख्तर को शिफा दे, अपनी अमान में रखें। मोहम्मद शामिर को शिफा, जितने बीमार हैं मौला हुसैन हॉस्पिटलों में, घरों में, बुजुर्ग, बूढ़े, बच्चे, मौला सबको शिफा दे। मौला सबके अच्छे नसीब करें। आप अपने बाबा अली माँ फातिमा ज़हरा के हक़त का वास्ता उनके सदक़े में हर बच्चे बच्ची के अच्छे नसीब फरमाइए अल्लाह। मौला अब्बास अलमदा भी उनकी ज़ोजा के सदक़े में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पाक बीबियों के सदक़े में मौला नजफ अब्बास फिज़ अब्दुल के अच्छे नसीब फरमा। मौला हुसैन ज़हरा हबीब अली के अच्छे नसीब फरमा। मौला जो परेशानियाँ दूर कर दे, कामयाबी अता फरमा, तंदुरुस्तियाँ दूर कर दे। मौला हुसैन बादशाह फुतरस को शिफा देने वाले हुसैन, अहूर को माफ़ करने वाले हुसैन, राहिब को उड़ा देने वाले हुसैन, हमारी भी मदद फरमा दीजिए। बादशाह हुसैन जैसे आपने हबीब को बुलाया था करबला, ऐसे ही हमें भी बुला ले, हमें भी अपनी ज़ारा नसीब फरमा, हम भी आना चाहते हैं। मौला हुसैन बादशाह हमें कब्र की सख्ती अजाब से बचाना, पहली रात हो और मौला हुसैन आपका दीदार मेरे अहले खाना समेत मेरे समेत सब मोमिन को नसीब फरमाई। मौला हुसैन बादशाह हमारी मदद फरमाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिब फजाल मुहम्मद बकाइम आले मुहम्मद। इलाही आमीन। मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए और जो भी आपकी शरई हाजात है मौला मकबूल फरमाए। शुक्रिया, सलामत रहें। हाँ। तो ईद मुबाहला के उन्वान से गुफ्तगू कर रहे थे और वहाँ पर बड़े वाज़ेह तरीके से कि जब बात आई कि नफ्से नबी यानी आप अपनी जानों को ले आइए, हम अपनी जानों को ले आइए, तो हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूलुल्लाह के साथ जो नफ्से नबी है उस उन्वान से आप रवाना और पूरे वहाँ पर जो भी आलम इस्लाम था उसने देखा और यकीनन जानते थे। और ये वाक़या 24 को यानी 24 ज़िलहज्जा को वाक़या हुआ और लेकिन एक बात जो है वो बिल्कुल साफ़ हो गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि ने अपने हयात तय्यबा में जो हक़ और हक़ानियत है वो लोगों के ऊपर ज़ाहिर कर दी थी और सब चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह थी। रुबा फातिमा कराची से इस वक्त हमारे साथ कॉल लाइन पे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी बिस्मिल्लाह। इस वक्त आप पाकिस्तान से कराची। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैकुम या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तब्बैक या हुसैन, सलाम या हुसैन। गदीर असल में ईमान की निशानी है। वाह। गदीर आया बल्ग़ की तर्जुमानी है। गदीर पैकर इस्लाम की जवानी है। गदीर लहरे विलायत की जीत का दिन है। गदीर असल में मर्दों की जीत का दिन है। जहाँ में दीन खुदा का निजाम बाकी है, फजा में शोरे दुरूदो सलाम बाकी है। सदाकतों का वही फैज़ आम बाकी है। खलीफा कोई नहीं, इमाम बाकी है। ये वारिसे असदुल्लाह जिंदा है। सकीफा मर गया लेकिन गदीर जिंदा है। इमाम अली नकी ने फरमाया, हसद नेकियों को तबाह करने वाला है। कंजूसी बड़ा मज़मूम अखलाक है। लालच बुरी सिफत है। गुरूर दुश्मनी लाने वाला है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इमाम ज़माना का जल्द से जल्द हम सबको मलाक लश्कर में शामिल फरमा। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला सलामत रखे आपको। इसी तरह आप प्रोग्राम करते रहें और आपकी नेक इबादत को कबूल फरमा। इलाही आमीन। अल्लाह आपको अपने ज़ामान में रखे, शुक्रगुजार है।
اور اسی طرح کال کرتے رہیے اور شرکت فرماتے رہیے. شکریہ, سلامت رہیں آپ. جی بالکل. اور چونکہ خصوصی طور پہ جو موقع گزرے ہیں, ایک تو عید غدیر کا موقع اور ایک جو ہے وہ عید مباہلہ کا موقع, اس کو بھی عید کہتے ہیں. اور بہرحال اس عنوان سے کہ ہر وہ دن جو خوشی کا دن ہو اس کو عید کہا جا سکتا ہے, لیکن بہرحال اس کو حدیث میں عید کہا گیا ہے یا نہیں کہا گیا ہے یہ ایک اور چیز ہے. لیکن یہ موقع جو تھا وہ بڑا خاص موقع ہے اور اسلام کے فتح کا دن ہے حقیقتاً, چونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا طریقہ کار تھا وہ یہی تھا کہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے, اور یہ دعوت دینا آج بھی اچھا عمل ہے. اگر انسان جو ہے وہ اس حد میں ہے کہ کسی کو دعوت دے سکتا ہے تو بے شک دے, لیکن ظاہر ہے کہ پھر دعوت کا اگر کسی چیز کے لیے آپ دے رہے ہیں تو وہ اسی انداز میں ہو سکتا ہے کہ انسان خود عمل پیرا ہو. اگر خود عمل پیرا ہے تو پھر تو دعوت دے سکتا ہے اور دینا بھی چاہیے, اچھی چیز ہے, سنت ہے. لیکن اگر آپ جو کچھ ایسے فرقے ہیں نا کہ وہ ہر چرسی اور بھنگی کو جو ہے نا وہ پکڑ کے ان کو جو ہے نا وہ چلے میں شامل کر دیتے ہیں, اس طرح ہے. اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, چونکہ ابھی تک وہ بیچارہ خود گناہوں سے جو ہے وہ آلودہ ہے, تو وہ کس طریقے سے مثلا جا کے لوگوں کو تبلیغ کرتا پھرے گا. زینب علی صاحبہ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ کال لائن پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یا جی مولا علی علیہ السلام مدد. جی بسم اللہ, سلام عرض کریں مولا کی خدمت میں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ, السلام علیک یا ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین, السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین, السلام علیک یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المومنین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا سلامت رکھے آپ کو, آپ لوگوں کو, اور جو بھی آپ لوگوں کی شرعی حاجات ہیں مولا قبول و مقبول فرمائے پہ حق امام حسین علیہ السلام. شکریہ آپ کا, سلامت رہیں. تو خدمت میں عرض کریں کہ عید مباہلہ یعنی خود اسلام کے فتح کا دن, اور دوسری طرف رستہ جو ہے وہ بالکل واضح ہو گیا کہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ اسلام باقی رہے گا. یہ جو جملہ ہے یہ بڑا پیارا جملہ ہے کہ جب بھی اسلام کے اوپر مصیبت آئی یا علی اور یا اولاد علی نے دفاع کی. یہ جملہ یعنی اسلام کو بچانے والی یہی ہے, یا علی ہے یا اولاد علی ہے. وگرنہ اگر حضرت امیر المومنین علیہ السلام نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا حقیقتاً, اور اگر اولاد علی نہ ہوتے پھر بھی اسلام نہ ہوتا. یعنی اسلام کو بچانے والے یہی حضرات ہیں, یا علی ہے یا اولاد علی علیہ السلام. چونکہ بنی امیہ اور اس سے پہلے جو ان کے سہولتکار تھے انہوں نے باقاعدگی سے یہ ارادہ کر لیا تھا اسلام کے خاتمے کے لیے, لیکن جہاں پر زمان رسول اللہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام دفاع فرماتے رہے سخت ترین جنگوں میں. ایسی جنگیں یعنی خود یہ جو معرکہ خیبر ہے, اگر انسان اس کو تاریخ میں پڑھیں, یہ دوسروں کی تاریخ میں نہ پڑھے, انہوں نے سب کچھ جھوٹ لکھا ہوا ہے. جو اہل البیت علیہ السلام کے مرید ہیں انہوں نے جو تاریخ نقل کی ہے وہاں سے جو روایات ہے اس میں آپ پڑھیں کہ یہ کس قدر سخت موقع تھا. فرح صاحبہ لکھنؤ سے اس وقت ہمارے ساتھ کال لائن پہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
सलाम को अच्छा रखे। और माशाल्लाह, इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में चैनल सलाम सलाम जी ये चैनल मौला के सदक़े में खूब तरक्की करे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदुल वासिईन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमता ज़हरा, अस्सलामु अलैका या इब्न खदीजतुल कुबरा, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या शहंशाह करबला, अस्सलामु अलैका या मज़लूम करबला, अस्सलामु अलैका या शहीद या इब्न शहीद, अस्सलामु अलैका या मज़लूम हुसैन या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या सक़ाए सकीना, अस्सलामु अलैका या क़मर बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका या बाबुल हवाइज, अस्सलामु अलैका या बा वफ़ा अब्बास अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या शहज़ादी सकीना बिन्तुल हुसैन, अस्सलामु अलैका या शहज़ादी ज़ैनब बिन्ते अली, अस्सलामु अलैका या बीमार करबला, अस्सलामु अलैका या असीरान करबला, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ। मौला हम लोगों को कोई गम न दीजिए सिवाय गम मज़लूम करबला की। जो बीमार है उनको शिफा दीजिए, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर कीजिए। और मौला हम लोगों को इमाम अलैहिस्सलाम के अंसारों में शुमार कीजिए, ताकि मौला आपके दुश्मनों से आपके खून के एक खतरे का बदला मौला के साथ मिल के ले सके, और मौला के दुश्मनों को, बीबी के दुश्मनों को हलाक करे। और मौला ही तो जान निसार। मौला हम लोगों को कोई गम न दीजिए सिवाय गम मज़लूम करबला के। या मेरे इमाम आपकी खिदमत में इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम की विलादत के पुरनूर मौके पर दिल की गहराइयों से आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश कर रही हूँ। मेरे मौला हम सब की तरफ से ये मुबारकबाद मेरे मौला की विलादत की कबूल फरमाइए। हम लोग का मौला का सदका हम लोगों को दे दीजिए। मौला हम लोगों को अपनी ज़ियारत के लिए करबला बुलाइए, बार बार आपकी ज़ियारत को आए मौला, और आपकी ज़ियारत करते रहें और शर्फ हासिल हो आपकी ज़ियारत का। मौला अरबईन में बुला लीजिए। या मेरे इमाम हम लोगों को कोई गम न दीजिए सिवाय गम मज़लूम करबला के। दीन के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कीजिए, शियत के दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कीजिए। हर रोज़े जो मशहद ख़ुम और सीरिया सब जगह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखिए और दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करिए। मौला हम लोगों को कोई गम न दीजिए सिवाय गम मज़लूम करबला की। और मेरे इमाम, ये इमाम हुसैन साहब टीवी जो हम लोगों को आपकी ज़ियारत के लिए लाइव टेलीकास्ट करती है, कनेक्ट करती है मौला आपसे। मौला ये रात दिन ये बहुत तरक्की करे और कोई परेशानी ना आए इस चैनल के ब्रॉडकास्ट में। या मेरे इमाम और जितने भी लोग, जितने भी मेंबर्स हैं इमाम हुसैन साहब टीवी के, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखिए और सबकी दिली हाजत, जायज़ हाजत को पूरी करिए। इलाही आमीन। लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए बेहक़ इमाम मज़लूम, और जो भी आपकी शरई हाजात है मौला मुस्तजाब फरमाए। शुक्रिया आपका, मौला आपको अपने ज़ामान में रखे। जहाँ तक हो सके हमारे फ़ोन नंबर को भी लोगों के साथ शेयर फरमाते रहिए। शुक्रिया। बहुत सारे फ़ज़ाइल अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के वारिद है कुरान करीम में, और जैसे ये आयत है उसके साथ साथ और भी बहुत सारे आयात इस हवाले से मौजूद है। और उसमें से एक रिवायत जो है वो सईद इब्न जुबैर अब्दुल्ला इब्न अब्बास से नकल करते हैं। या रसूल अल्लाह, किसी शख्स ने सवाल किया और ज़ाहिर सवाल किया, या रसूल अल्लाह मन क़राबतुक हाउलाई अल्लज़ी वजबत मुवद्दतुहुम। किसी शख्स ने सवाल किया कि आपके वो, चूँकि जब ये आय करीमा नाजिल हुई कुल असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, तो वहाँ किसी ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह ये आपके कराबत वाले लोग जो है ये कौन है। सईद जुबैर अब्दुल्ला इब्न अब्बास से नकल करते हैं और किताब
जो है वो तफसीर राज़ी में ये मौजूद है। तो हज़रत ने फरमाया क़ाल अलीयुन व फ़ातिमतो व वलदाहा, यानी हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फ़ातिमा और उनकी औलादें, यानी उनके बेटे जिनकी जो है वो वाजिब है उनसे मवद्दत रखना वाजिब है। और अहमद बिन हम्बल रिवायत करते हैं, हज़रत यानी अहमद बिन हम्बल जो है फ़ज़ाइल सहाबा में किताब है अहमद बिन हम्बल की फ़ज़ाइल सहाबा, वहाँ पर इसी आयत के ज़ेल में ये नकल करते हैं लम्मा नज़लत कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, जो सूरह शूरा की आयत है, ये जब नाजिल हुई तो उस वक़्त कहा कि क़ालू या रसूल अल्लाह, किसी ने सवाल किया कि अल्लाह के नबी, मन कराबतुक हाउला इल्लज़ी वजबत अलैना मवद्दतुहुम, ये कौन है जिनकी मवद्दत जो है वो हमारे ऊपर वाजिब है। चूँकि उन्होंने सवाल किया तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि क़ाल अलीयुन व फ़ातिमतो व अबनाहुमा, फरमाया कि अली, फ़ातिमा और उसके दो बच्चे, यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। यानी अब गौर कीजिए, ये अहमद बिन हम्बल ने फ़ज़ाइल सहाबा के अंदर ये लिखा है। यानी इस तरह और भी बहुत सारे हैं। अच्छा, इनकी एक चीज़ जो बड़ी मैंने नोट की है, इनके मुनाज़रात में, इनकी बातों में, इनके जो उलमा वग़ैरह लिखते हैं या जो कहते हैं, ये फ़ज़ाइल सब मानते हैं, लेकिन जब बात खिलाफत की आती है, दीन की आती है ना, फिर ये दीन अहलुल बैत से नहीं लेते, फिर दीन किसी और से लेते हैं। ये इनका तरीका है। फ़ज़ाइल ये मानते हैं कि अहलुल बैत के बराबर फ़ज़ाइल किसी के हो ही नहीं सकते, लेकिन जब बात आती है दीन की, यानी दीन से मुराद यह है कि खलीफा बनाना हो, फिर किसी और को बनाएंगे। अगर कोई हदीस लेनी है वो भी किसी और से लेंगे, फिर यह अहलुल बैत से लेते। भाई इन्होंने अहलुल बैत को ऐसे समझा हुआ है कि इनसे कोई हिदायत नहीं लेनी है, सिर्फ बस अपने ज़हन में इनको आप रखें। ये इनका तरीक़ाकार है। और ये तरीक़ाकार मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि यही तरीक़ाकार जो है वो खुलफ़ा भी यही करना चाह रहे थे। इन्होंने सिर्फ इमाम हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से बैअत लेनी थी, फिर उनको एक मुक़द्दस शख्सियत बना के घर में बिठाना था, जैसे ये बाद में भी करते रहे। जब भी इनसे कोई सवाल करते थे, मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पास भेजते थे। इन्होंने इस तरीके से करना था, चूँकि सब जानते थे। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम ने दीन इस्लाम को इस किस्म के लोगों के हाथ में तो देना नहीं था, तो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम ने शहादत कबूल की। हज़रत ज़हरा की शहादत, हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बाद में शहादत जो इसी की कड़ी थी, और हज़रत सैयद शुहदा हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिमुस्सलाम, सारी की सारी शहादतें इन्होंने दीन इस्लाम के लिए दी, चूँकि ये लोग इनको मुक़द्दस बना के घर में बिठाना चाह रहे थे। वो कबूल उन्होंने नहीं की, चूँकि अल्लाह की हुज्जत थी। और बनु अब्बास भी दकीकन यही पॉलिसी का इस्तेमाल करना चाह रहे थे कि हम अइम्मा अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम को मुक़द्दस बना के घरों में बिठा देंगे, और फिर हम लोगों से कहेंगे कि सारे फ़ज़ाइल इन्हीं के हैं, लेकिन ज़ाहिर है इनकी रज़ामंदगी से हम हुकूमतें कर रहे हैं। वो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम करने नहीं दे रहे थे। शहादत वाक़या इस वजह से हुई है, वरना ये पूरे कायनात आलम को आप इनकी किताबें उठा लीजिएगा, जो भी इनके सिहाए सित्ता है आप उठा लीजिएगा, आपके लिए बिल्कुल ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि सारे के सारे फ़ज़ाइल जो है वो अइम्मा अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के हैं। दूसरा कोई भी उनके साथ फ़ज़ाइल में आ ही नहीं सकता। ये बिल्कुल इनकी जो है ना मुसल्लमात है, दीन इस्लाम के मुसल्लमात है। लेकिन जो इनकी प्लानिंग थी वो इसी तरीके से थी। बनु उमैया की भी यही प्लानिंग थी, बनु अब्बास की भी फिर यही प्लानिंग थी, और ये अहलुल बैत के साथ जो करना चाहते थे वो ज़ाहिर खुदा के मंशा के ख़िलाफ़ चीज़ें थी। तो इस वजह से ये शहादतें वाक़या हुई। दीन इस्लाम के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ अली और औलाद अली ने दी है, और सबसे ज़्यादा नहीं, सारी के सारी इन्होंने दी है। यानी कोई दूसरा कोई कुर्बानी नहीं दे सका ना।
اصل میں تو جو اصحاب شہید ہوئے ہیں وہ بھی انہی کی محبت میں شہید ہوئے ہیں، اور بنو امیہ نے جن اصحاب کرام کو شہید کیا یا اس سے پہلے بنو امیہ کے جو سہولت کار تھے، جو مقدمہ بنو امیہ تھے، انہوں نے جتنی تکلیفیں دی ہے اہل البیت علیہ السلام کی وجہ سے دی ہے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ دین اسلام کو بچانے والے ہی اہل البیت ہیں۔ آج چونکہ ظاہر ہے ہم گفتگو کر رہے ہیں مباہلے کے میدان سے، تو مباہلے کے میدان سے یہ سلسلہ چلا، اور پھر جو ہے وہ تاریخ غدیر کے میدان تک پہنچی، اور پھر غدیر کے میدان سے ظاہر ہے جاتے جاتے کہیں نہ کہیں یہ میدان کربلا تک یہ داستان پہنچی، اور وہاں پر بھی حضرت سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی ایسی دفاع کی، ایسی تضمین شدہ دفاع، لیکن ظاہر ہے اس میں بھی کچھ چیزیں بچتی تھی، لیکن اولاد علی میں سے حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اس کے بعد جو کردار ادا کیا، اور پورے انبیاء اور پورے جو سسٹم ہے الہی سسٹم جو ہے وہ اس بی بی کا مقروض ہو گیا حقیقتاً، کیونکہ ذہنی تہرانی نے آخر میں یہ جملہ لکھ دیا اپنے مقتل کے آخر میں کہ اگر حضرت زینب سلام اللہ علیہا نہ ہوتی تو کربلا جو ہے وہ کربلا میں رہ جاتا، یعنی جو سلسلہ ہے وہ وہیں پہ اس نے ختم ہونا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اس بی بی نے کردار ادا کیا، اور بی بی کا کردار بھی ایسی تھا کہ جہاں کہیں پر بھی جاتی تھی اور جہاں خطبہ فرماتی تھی تو لوگ کہتے ہیں علی آ گئے، یعنی جہاں کہیں پر بھی جاتی تھی لوگوں کو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی یاد آ جاتی تھی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام پر صرف اور صرف علی اور اولاد علی نے جو احسانات کیے ہیں اسے کوئی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ جو کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو وہ دین اسلام میں یقیناً نہیں ہے۔ بہرحال چونکہ ہمارا گفتگو کا سلسلہ بھی یہیں پر تمام ہوتا ہے، انشاءاللہ العزیز کل بشرط حیات دوبارہ آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ فی الحال آپ سے لیتے ہیں اجازت، اپنا خیال رکھیے، اور تمام دعاؤں کی آخری دعا ایک ہی دعا، اور وہ ہے حجت خدا کے ظہور کے لیے۔ آئے مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔ آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔